चलते नहीं ना पापा के बाद बोला यहाँ पे बैठ जाओ, आप कीर्तन करेंगे। अच्छा यहाँ तक कृष्ण तो मेरे पास आजा बेटा। तो आई थिंक अभी लोग सब ज्वाइन कर रहे हैं धीरे धीरे। चलो तब तक कीर्तन शुरू करते हैं, थोड़ी देर में सब ज्वाइन कर लेंगे। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदान्ता स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्ता देशतारिणे। सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्ता देशतारिणे। जय श्री कृष्ण जय चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौरा भक्तवृंदा। जय श्री कृष्ण जय चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौरा भक्तवृंदा। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौरा भक्तवृंदा। प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे
Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna Hare Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare, Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare, Krishna, Krishna, Hare Hare, क्या चल रहा है? Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram, Ram Hare Hare, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Krishna,
Krishna Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna Krishna तो इसीलिए पीछे Hare Ram Ram Hare Hare Govinda Jaya Jaya Gopal Jaya Jaya 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 Radha Ramana Hari Govinda Jaya Jaya मेरा स्वाद Govinda Jaya Govinda Jaya Jaya Gopal Jaya Jaya Radha Ramana Hari Govinda Jaya Jaya Govinda Jaya Jaya Gopal Jaya Jaya Radha Ramana Hari Govinda Jaya Govinda Jaya Jaya Gopal Jaya Jaya Radha Ramana Hari Govinda Jaya Jaya Govinda Jaya Jaya Gopal Jaya Jaya Radha Ramana Hari Govinda Jaya Jaya Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare दो Krishna Hare 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 Ram Ram Hare Hare Jai Radha Madhava Radha Madhava Radha Jai Radha Madhava Jai Radha Sundara Jaya Krishna Balaram Krishna Balaram Krishna Balaram Jaya Krishna Balaram Jaya Jaya Lakshmi Narasimha Jaya Lakshmi Narasimha Jaya Lakshmi Narasimha Jaya Jaya Lakshmi Narasimha Jaya Narasimha Jaya Narasimha Jaya Jaya Gauranita 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 Jaya Gaur Jaya Gauranita 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 Jaya Gaur Jaya Sitaram Lakshmana Hanuman Sitaram Lakshmana Jaya Sitaram Lakshmana Sitaram Lakshmana Jaya Jaya Prabhupada Prabhupada Jaya Jaya Amita Gaura Hari Hari
हरि बोल निताय गौर कीर्तन करा रहे थे क्या? I see a lot of some new faces join. आप अपना कैमरा अगर ऑन करें तो we can see everyone. Welcome everyone for Sunday programs, morning program, सत्संग प्रोग्राम. तो अभी हमने एक राउंड हरे कृष्णा मंत्र किया. Now we'll do one round of जपा together. तो हरे कृष्णा महामंत्र अभी इसके बाद जो भगवत क्लास होगी उसमें वो प्रभु जी बताएंगे. तो अभी हम साथ में करते हैं. तो जितने लोग अभी अफेक्टेड हैं कोरोना से और बाकी जितनी समस्याएं जो चल रही हैं उसका एक ही समाधान है कि भाई भगवान का नाम ही लेना और उसी से ही शक्ति मिलेगी और उसी से ही सबका उद्धार होगा. तो कलयुग में यही एक साधन है और कोई साधन दूसरे साधन जो है वो इस कलयुग में उपयुक्त नहीं है. लाइक दे आर नॉट वेरी फ्रूटफुल. एक राउंड करेंगे टुगेदर. मां विष्णुपदाय कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमती भक्तिवेदांत स्वामी नाम ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर. सब साथ में कर सकते हैं. जिसके पास है माला वो माला पे और जिसकी नहीं है तो वो बस फॉलो करें. तो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे कृष्णा हरे राम राम हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम राम हरे कृष्णा हरे राम राम हरे कृष्णा 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 कृष्णा हरे राम हरे राम कृष्णा कृष्णा हरे राम राम हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम राम हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम राम हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे राम
हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण। अभी हमने 1 राउंड जपा किया तो एक राउंड में 108 मन के होते हैं माला में, तो 108 बार हरे कृष्णा मंत्र किया और एक हरे कृष्णा मंत्र में हम 16 बार भगवान का नाम लेते हैं, तो 16 इंटू 108 1728 हो जाता है, तो 1728। और हम बोलते हैं कि हम एक बार राम बोलते हैं तो उसमें 1000 विष्णु का नाम आ जाता है, और एक बार कृष्णा बोलते हैं तो 3 बार राम। इस हिसाब से अगर हम माला करते हैं तो इसका बहुत बेनिफिट है। तो अभी मैं हल्दर सुंदर प्रभु जी को इनवाइट करूंगा। अब वो थोड़ा सा भागवतम से थोड़ा प्रवचन करेंगे और थोड़ा हमको ज्ञान देंगे। तो हल्दर सुंदर जी प्रभु, ये पहले भी आपने सबने देखा ही होगा, ये आ रहे हैं हमारे प्रोग्राम में आते हैं। तो जो इस्कॉन में, जो इस्कॉन इंडिया के चेयरमैन है हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, उनके शिष्य हैं, डिसाइपल हैं और मेरे गॉड ब्रदर हैं। तो प्रभु जी, ओवर टू यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। सबको हरे कृष्णा और सबका स्वागत है इस संडे के इस्कॉन मिल्टन के प्रोग्राम में, जहां हम भगवान के और भगवान के भक्तों के बारे में चर्चा करते हैं। तो आज मैं पहले तो सभी लोगों को धन्यवाद करता हूं कि आप इतना अपने जीवन के, व्यस्त जीवन के अंदर से थोड़ा समय निकाला भगवान के बारे में समझने के लिए। तो फॉर दैट आई वांट टू थैंक एवरीवन, सबको धन्यवाद। और हो सके तो अगर सब कैमरास अगर
ऑन कर ले तो क्या है, ये पर्सनल 1-to-1 इंटरेक्शन हो सकता है, फेस टू फेस इंटरेक्शन हो सकता है अगर आप चाहो तो हम यहाँ चालू करेंगे। देखो हम चालू करने के पहले हम भगवान का 2 हाथ जोड़ के भगवान का स्मरण करते हैं, इसलिए स्मरण करने से फिर हम आगे चालू करेंगे। तो मैं एक मंत्र बोलूंगा भगवान का, फिर आप पीछे दोहरा सकते हैं, फिर हम चालू करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 हरे कृष्ण। तो अभी हम यहाँ भौतिक जगत में अभी देख रहे हैं हम कि कोरोना वायरस से पूरा दुनिया जूझ रहा है, कि बहुत ही स्ट्रगल कर रहा है। तो हम ये इस भौतिक जगत में हैं और भगवान है वैकुंठ धाम में। तो ऐसा हमें भगवान के पास जाना है, मगर ऐसी क्या चीज है जो भगवान से हमें दूर रख रही है, ये हमें समझना चाहिए। क्योंकि हमें किसी लोगों को इस संसार में जो भी है उन्हें दुख नहीं चाहिए, तो भी उन्हें दुख मिल रहा है। तो ये दुख का कारण क्या है और हम इस जगत में क्यों दुख प्राप्त कर रहे हैं और भगवान को मिल नहीं रहे और भगवान के पास नहीं जा पा रहे, इसका रीजन क्या है। तो आज हम है ना कर्म के विषय में कुछ जानने की प्रयास करेंगे। तो ये जो हमारे कर्म होते हैं ना, वही हमें भगवान के पास पहुंचने में बाधा देते हैं और रुकावट बनते हैं। तो हम आज कर्म के सिद्धांत, कर्म क्या होता है, कर्म कितने प्रकार के होते हैं, कर्म के सिद्धांत क्या होते हैं, किस तरह से कर्म काम करता है, और अंत में कर्म से कैसे छुटकारा पाया जाए, इसका हम आज ये जो सेशन है, आज जो हम कार्यक्रम कर रहे हैं, उसमें हम प्रयत्न करेंगे जानने का। तो हम पहले तो समझ लिया कि हम यहाँ पे क्यों है, क्योंकि हमें हमारे जो कर्म है हमें बाधा देते हैं कि भगवान के पास पहुंचने में। तो हम पहले इस कर्म को कैसे समझे, उसके पहले मैं एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहता हूँ, छोटी सी, जिससे हम थोड़ा बहुत समझ पाएंगे कि कैसा होगा, फिर हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। तो दक्षिण भारत में एक मंदिर था भगवान विष्णु का। तो वहां पे लोग प्राय आते रहते थे, भगवान के दर्शन करते रहते थे। तो एक बार ऐसा हुआ कि एक धनी व्यक्ति जो कभी भगवान के मंदिर में नहीं जाता था, मगर एक बार उसने सोचा चलो मंदिर चला जाए, बहुत समय हो गया, मैं बूढ़ा भी हो गया हूँ और पूरी जिंदगी मैंने निकाल दी पैसे कमाने में, तो चलो चलते हैं मंदिर में। तो वो धनी व्यक्ति मंदिर में गया एक बार भगवान के दर्शन करने के लिए, और बहुत तीव्रता से प्रार्थना करना लगा और भगवान को कहने लगा, भगवान मेरे को आपने बहुत सालों के बाद मुझे अपने मंदिर में बुलाया, अपने पास बुलाया है, तो उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो प्रार्थना कर रहा था और उस समय में उसका पर्स है ना, वो उससे सोचा कि चलो भगवान के पास आया हूँ बहुत सालों के बाद, तो मैं कुछ भगवान को दक्षिणा देता हूँ। तो उसने अपने जेब से कुछ 2000 की नोट निकाली और मंदिर के हुंडी में रख दी। और उस टाइम पे वो क्या किया, उसने वो पर्स लेना भूल गया और वो पर्स वही हुंडी पे छोड़ के चला गया। तो कुछ समय के बाद, आधे घंटे के बाद, एक बहुत गरीब व्यक्ति भी वहां आया था भगवान के दर्शन करने, क्योंकि बहुत परेशान में था। तो भगवान को प्रार्थना करने लगा कि प्रभु, मैं इतने तकलीफ में हूँ कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे घर में लोग इतने बीमार है, मेरे पास पैसा नहीं है और मुझे नौकरी नहीं है, तो मेरे को अभी घर में किस तरह से खाना खिलाऊं, लोगों की दवाई करवाऊं, तो मेरे पास पैसा नहीं है, तो प्लीज मुझे मदद करिए और मुझे यहाँ से छुटकारा दिलवाइए। तो तब उसकी नजर में, जैसे ही वो प्रार्थना खत्म की उसने भगवान के पास से, तो उसने देखा कि हुंडी पे एक पर्स पड़ा हुआ था। तो वो जो कि भगवान का भक्त था, तो उसने क्या किया, उस पर्स को लेके 2-4 लोगों को पूछने का प्रयत्न, मगर मंदिर थोड़ा खाली था, दोपहर का टाइम था, तो कोई मिला नहीं। और उसने ट्राई किया कि भाई ये पर्स किसी का है, क्योंकि कोई भूल गया है, मगर उससे कोई मिला नहीं। तो उसने सोचा कि शायद तक मैं इतने बहुत तीव्रता से भगवान की प्रार्थना कर रहा था, तो शायद तक भगवान ने ही मुझे ये पैसे दिए हैं। तो ये सोच के वो व्यक्ति वो पर्स को लेके चला गया और उसको पैसे मिल गए थे। मगर उसके बाद तुरंत एक नाविक आया। नाविक
जबकि वो भी है ना एक दूर की यात्रा करने में जाने वाला था। तो वो प्रार्थना करने लगा, भगवान अभी मैं एक दूर की यात्रा 1.5 महीने की यात्रा करने जा रहा हूँ, तो मैं भी अपने परिवार से दूर रहूंगा, तो मैं चाहता हूँ कि मैं कुशल मंगल से वापस आ जाऊं और मेरे परिवार का आप ध्यान रखना। ऐसे करके वो प्रार्थना कर रहा था। मगर ये जो मैंने आपको कहानी बताई, उसके पहले क्या हुआ था उसका मैं थोड़ा डिटेल बता देता हूँ। कि उस मंदिर में एक झाड़ू मारने वाला रहता था। तो झाड़ू मारने वाले ने एक बार वो भगवान का भक्त हर रोज झाड़ू मारता था। तो उस भगवान के भक्त ने एक बार भगवान से बात की और कहा कि प्रभु आप पूरे दिन खड़े रहते हो, भगवान सबकी आते सब जो आते हैं उनकी बातें सुनते रहते हो, तो आप थक नहीं जाते हो? क्योंकि आप तो कोई रेस्ट नहीं, हम तो रेस्ट भी लेते हैं, आप तो पूरे दिन 24 घंटे मुरली पकड़ के खड़े रहते हो, तो मुझे बहुत दया आती है आप पे। तो भगवान उसकी ऐसी रमूजी बातें सुन के इतने खुश हो गए। तो भगवान ने बोला कि तू क्या चाहता है? भगवान बातें करने लगे उस स्वीपर से, उस झाड़ू मारने वाले से। तो प्रभु मैं चाहता हूँ कि आप एक दिन के लिए रेस्ट कर लीजिए, क्योंकि आप कितने सालों से खड़े हो और आप भक्तों की बातें सुनते रहते हो। तो मैं चाहता हूँ कि आप है ना एक बार है ना हम अपनी जॉब एक्सचेंज कर लेते। तो मैं एक टाइम करता हूँ, मैं आपकी जगह पे खड़ा रहता हूँ, आप मेरी तरह एक थोड़ा थोड़ा रेस्ट कर लेके आइए एक दिन के लिए। तो भगवान बोले मगर एक समस्या है। उस झाड़ू वालों को बोले, तो बोले क्या समस्या है? तो कि प्रभु आपको, प्रभु ने बोला, भगवान ने बोला उस झाड़ू, तुझे कुछ करना नहीं है, जो हो रहा है उसको देखा कर और खड़े रहना है, मैं आराम करके आऊंगा। तो झाड़ू बोला कि ठीक है। तो भगवान बोला शर्त भूलना मत हो भाई, तुझे कुछ करना नहीं है। तब वो झाड़ू वाले ने बोला कि ठीक है मैं ऐसा करूंगा। तो उस दिन पे ये जो कार्य हुआ, में हमने जो बात की कि वो धनी व्यक्ति आया, गरीब आया और वो नाविक आया, वो स्टीमर का कैप्टन, उसी दिन ये हुआ था। तो वो उस टाइम पे जो भगवान की जगह पे खड़ा था, वो अपने डुप्लीकेट भगवान थे, अपने मतलब झाड़ू वाला था, और वो खड़ा था। तो वो पूरा सीन देख रहा था कि भाई एक धनी व्यक्ति आया है, अपना पर्स भूल गया है और फिर वो चला गया। फिर एक गरीब व्यक्ति आया है, उसने पर्स लेके चला गया। फिर एक नाविक आया है और उन्होंने भगवान से प्रार्थना की है कि भाई मुझे अभी लंबी यात्रा पे जा रहा, तो मुझे रक्षा करना। तो ये सब देख रहा है कौन? भगवान की जगह पे जो खड़ा है हमारे डुप्लीकेट भगवान, जो वो देख रहे थे। और भगवान ने उनको कहा था कुछ बोलना नहीं है, तुम्हें जो हो रहा है देखते रहना है। तो उतनी देर में फिर वो नाविक चलने ही वाला था, मंदिर से जाने ही वाला था, तभी वो पहले जो धनी व्यक्ति आया था वो अपनी पुलिस को लेके आया, क्योंकि उसका पर्स खो गया था। तो उसने आके देखा, देखो मेरा पर्स खो गया। पुलिस वालों को बोला देखो यार जो भी, कोई दिख तो नहीं रहा, मगर मुझे लग रहा है कि ये व्यक्ति जो खड़ा है, जो नाविक कैप्टन था स्टीमर का, बोले कि यही लग रहा है कि इसने चोरी की है, तो इसको पकड़ के ले जाए। तो वो बोल रहा है कि नहीं मैंने कोई चोरी नहीं की है, मैं तो ऐसा ही भगवान के दर्शन करने आया था, क्योंकि मैं भी आज जा रहा हूँ। मगर वो धनी व्यक्ति मान नहीं रहा था, उसने पुलिस को फोर्स किया और पुलिस उसको पकड़ के लेके जा रही थी जेल में डालने के लिए। और यहाँ पे हमारे जो डुप्लीकेट भगवान थे, स्वीपर जो थे झाड़ू वाला, बोले कि भाई गलत हो रहा है, क्योंकि पूरा गड़बड़ हो गया कि उस नाविक ने तो लिए नहीं पैसे, ये तो गरीब लेके चला गया, गरीब आदमी लेके चला गया था। तो उसने वो स्वयं वो प्रकट हुए थे अपने अपने मूर्ति से बाहर आके, वो स्वीपर बोलने लगा कि भाई देखो ठहरिए सब लोग। पुलिस वाले को बोले ठहरो, ये बंदा, ये कोई चोर नहीं है, चोरी जिसने की है वो गरीब था, वो जो आगे गया उसको पकड़ लिए। उस तरह से पूरा मामला सुलटा दिया, जैसे उनको लगा कि ठीक है भाई धनी को भी पैसा मिल गया, वो नाविक को भी छोड़ दिया गया। इस तरह से उन्होंने फिर सब हो गया। फिर शाम को जब भगवान वापिस आए और बोले कैसा रहा तेरा दिन? बोले बहुत बढ़िया प्रभु, मगर पूछो मत, इतना टेंशन था, आप मेरा आप इतना सबके झोल झाल से मैंने सबको निपटा दिया। भगवान बोले क्या निपटा दिया? मैं ना तो बोला तुझे कुछ करना नहीं है, कि नहीं नहीं प्रभु क्या बात कर रहे हो, ऐसा ऐसा हुआ था। और फिर भगवान बोले यार तेरे को मैंने क्या बोला था, ये तुझे कुछ करना नहीं है। उसका रीजन बताता हूँ। जो धनी व्यक्ति था ना, बहुत सालों से कभी उसने दान पुण्य नहीं किया था। तो जब उसने पैसा रखा तो उससे दान हो गया। दूसरा उसके पैसों से जो गरीब था ना, वो मेरा भक्त था, उसको पैसे की जरूरत थी, उस हिसाब से उसको गरीब का भी दान हो गया। तो वो इसलिए मैं चाहता था कि वो गरीब को पैसा मिले। और रही बात उस सेलर की, वो भी जो आज जाने वाला है वो नाव में, अगर वो पुलिस पकड़ के ले जाती तो आज उसकी नाव डूबने वाली है। अब तूने उसको पकड़वाने से छोड़ दिया, असल वो एक दिन जेल में रहता तो उसकी नाव चलती नहीं, तो वो कभी डूबता नहीं, मगर अभी आज उसकी नाव डूबने वाली है, तो पूरी तूने गड़बड़ कर दी। तो कहने का अर्थ है कि जो हमारे जो कर्म हमारे जो चलते रहते हैं कि एक दूसरे के जन्म, ये भगवान का पूरा सेटिंग होता है, कौन कैसे चलेगा। तो हमें हमारा दिमाग नहीं दौड़ाना है,
तो इस छोटी सी बात से हम ये समझेंगे कि जो कर्म की जो आटी गुची है, कर्म की जो जटिलता है वो बहुत ही कठिन है समझना। भगवान गीता में भी कहते हैं 4थे अध्याय में 17वां श्लोक में, ये जो हे अर्जुन, ये जो कर्म की आटी गुची है, जो कर्म की गुत्थी है, वो सुलझाना बहुत मुश्किल है। तो भी हम प्रयत्न करें, भगवान ने भी गीता में जो कहा है उसके हिसाब से हम थोड़ा प्रयत्न करेंगे कर्म क्या है। स्वाभाविक जब हम किसी को कहते हैं कि कर्म करना चाहिए, तो कर्म का अर्थ काम नहीं होता। कोई भी किसी को पूछे भाई कर्म करना, भगवान ने अर्जुन को कहा, क्या कहा है गीता में? कर्म करना है। कर्म करना का मतलब काम करना नहीं है। वरना कोई व्यक्ति चोरी करता है तो बोले मैं तो चोर हूं, तो मेरा काम तो चोरी करना है, तो वो भी कर्म कर रहा है। तो नहीं, इसको कर्म नहीं बोलते हैं। तो पहले हम कर्म के 3 विभाग समझेंगे। कर्म 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं कर्म, दूसरा होता है विकर्म और तीसरा होता है अकर्म। कर्म का मतलब जो शास्त्रों के अनुसार जो कर्म कर्म करने को बोले हैं वर्णाश्रम में, उसे कहते हैं कर्म। दूसरा होता है विकर्म। विकर्म का मतलब जो शास्त्रों के विरुद्ध कर्म करना, जैसे चोरी करना, लूटफाट करना, किसी को दर्द देना, दुख देना, दर्द देना, ये सब बोलते हैं विकर्म, विरुद्ध कर्म, विकृत रूपे न कर्म। जो कर्म के सिद्धांतों के, धर्म के सिद्धांतों के खिलाफ है, उसको बोलते हैं विकर्म। तीसरा होता है अकर्म, जिसकी हम डिटेल में समझेंगे। कर्म ऐसा कर्म जिसके रिएक्शन या किसी उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उसके बारे में हम लास्ट में चर्चा करेंगे, क्योंकि वही हमें करना है आगे जाके। तो हम यह समझे कि कर्म 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है कर्म, कर्म का मतलब जो शास्त्रों के हिसाब से होता है उसे बोलते हैं कर्म। दूसरा होता है विकर्म, विकर्म का मतलब जो शास्त्रों के विरुद्ध होता है। और तीसरा होता है कर्म अकर्म, अकर्म का मतलब जिसका फल नहीं मिलता कभी किसी को, ये होता है। तो ये तो हो गए 3 प्रकार के कर्म। मगर हमें ये कर्म के बारे में समझने के पहले थोड़ा समझना पड़ेगा कर्म कैसे, उसके उसके पहलू समझने पड़ेंगे, जो उसके बारे में थोड़ा समझने का प्रयत्न करेंगे। कर्म के पहलू कैसे होते हैं? कर्म के 3 पहलू होते हैं। पहला होता है कि वो हर किसी को लागू पड़ता है। मैं कोई ऐसा नहीं बोलता भाई मेरे को कर्म लागू नहीं पड़ेगा, नहीं, कर्म इज यूनिवर्सल, वो सबको लागू पड़ेगा। जैसे कि जो ग्रेविटी का लॉ होता है, जो गुरुत्वाकर्षण जो लॉ होता है, अगर कोई चीज ऊपर से गिराओगे तो स्वाभाविक वो नीचे गिर जाएगी। उसी प्रकार से समझो कोई बच्चा गिरेगा तो कोई ऐसा बोलेगा नहीं है, तो गुरुत्वाकर्षण कभी ऐसा नहीं सोचेगा वो बच्चा गिर रहा है उसको लग जाएगी, नहीं, वो गिरेगा तो उसको लगेगा, मतलब उसको वो लॉ अपना स्टॉप नहीं कर सकता। उसी हिसाब से कर्म का लॉ ऐसा होता है जो हर किसी को लागू पड़ेगा। कोई ऐसा नहीं बोल सकता नहीं 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 मुझे नहीं लागू पड़ेगा, ना, ये सबको लागू पड़ेगा। हर किसी को कर्म के सिद्धांत लागू पड़ते हैं, नंबर 1। नंबर 2 जो उसका दूसरा पहलू है, उसका कॉज एंड इफेक्ट, मतलब उसका कारण और उसका प्रभाव। जैसे कि कोई व्यक्ति समझो बोले डॉक्टर के पास जाए और कहे कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है, तो डॉक्टर पहले क्या पूछेगा? आपने पिछली रात क्या खाया था? तो वो पूछ सकता है कि भाई पेट में मेरे को अभी दर्द हो रहा है, आप मुझे पिछली रात में क्या खाया? मतलब कर्म का कभी भी कोई फल मिलता है तो उसका कोई कारण होना जरूरी है। तो ये हमें समझना। या फिर समझ लो दूसरा एग्जाम्पल, कोई व्यक्ति एग्जाम में फेल हुआ है, तो हम पहला प्रश्न क्या बोलते हैं? भाई तूने पढ़ाई ठीक से नहीं की, मतलब इसका कोई कारण होना जरूरी है। तो कर्म का दूसरा पहलू ये है कि कभी भी कोई कर्म का फल मिलता है तो उसका कारण होता है, ये दूसरा पहलू है। तीसरा पहलू ये है कि कर्म बहुत ही सटीक होता है, मतलब कभी गलत किसी को नहीं मिल जाएगा कि भाई मेरे को कुछ मिल रहा है तो गलत नहीं। उसका भगवान के जो सुपर कंप्यूटर्स है, जो भगवान के जो नियमक जो रखे गए हैं, जो पूरा अपना सिस्टम है, हर किसी को चुन चुन के, मतलब जिसको जितना कर्म का फल मिलना चाहिए उतना ही मिलेगा, किसी को ज्यादा नहीं मिलेगा, किसी को कम नहीं मिलेगा। इतना सटीक है जैसे कि कोई बड़ी गौशाला होती है, मुझे हजारों हजारों गाय होती है, मुझे समझो गाय का बछड़ा है, उसका वो खो जाता है और समझो वो ढूंढ रहा है, तो माँ भी है ना अपने हजारों गायों में उसके बछड़े को ढूंढ पाती है, इवन तो हजारों गाय होने के बावजूद। उस इतना इतना कर्म का सिद्धांत इतना सटीक है, उसको ही मिलेगा, उतना ही मिलेगा जिसका जितना उसको चाहिए। ये है दूसरा चीज। और दूसरी मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ, या फिर बहुत सारे लोग रोड पे चलते हैं, हर किसी का एक्सीडेंट नहीं होता है, जिसके कर्म में उस टाइम पे एक्सीडेंट होना है उसी का ही होगा। मतलब कर्म के 3 पहलू है। पहला है यूनिवर्सल, मतलब वो हर किसी को लागू पड़ेगा। दूसरा उसका पहलू है कि उसका कोई ना कोई कारण होना चाहिए, फल के कोई भी कारण होना चाहिए। और तीसरा वो सटीक है। ये कर्म के 3 पहलू रहते हैं कि यूनिवर्सल, कॉज एंड इफेक्ट, मतलब
फल और उसका कारण, और तीसरा सटीक है। तो इस हिसाब से हम कर्म के थोड़ी बहुत चीजों को बेसिक समझने का प्रयत्न करते हैं। कर्म 3 प्रकार, तो यहाँ तक मैं समझता हूँ कि थोड़ा बहुत आइडिया सबको आ गया होगा कि कर्म 3 प्रकार के होते हैं, कर्म, अकर्म और विकर्म। न कि बेसिक समझना नहीं है कि कर्म का मतलब काम है, या फिर कर्म का मतलब कुछ भी करो उसको कर्म बोलते हैं, नहीं। कर्म 3 प्रकार के होते हैं, कर्म, अकर्म और विकर्म। ये कर्म के 3 पहलू होते हैं। तो मैं आशा रखता हूँ कि यहाँ तक बेसिक अंडरस्टैंडिंग सबको आ गई होगी। कर्म क्या है, कर्म के कितने प्रकार होते हैं, कर्म के कितने पहलू होते हैं। तो कोई व्यक्ति पूछ सकता है कि चलो कि कर्म के 3 पहलू समझ गए, कर्म के 3 प्रकार समझ गए, मगर हम ये नहीं समझ पाते कि कभी कभी देखते हैं कि कोई अच्छे व्यक्ति पूरी जिंदगी अच्छा कार्य करते हैं तो भी कभी कभी उनको बुरा फल भुगतना पड़ता है, या फिर कोई कोई व्यक्ति बहुत बुरा कार्य करते रहते हैं पूरी जिंदगी, मगर तो भी अच्छी तरह से रहते हैं। हम देखते हैं समाज में ऐसा ऐसा अव्यवस्था कथाकथित वैसा वो व्यवस्था परफेक्ट है, मगर ऐसा दिखा जाता है कि कोई व्यक्ति सज्जन है तो भी उसको दुख भुगतना पड़ता है, कोई दुर्जन है तो भी वो सुख भुगतता है। तो इसलिए कभी कभी इंग्लिश में कहते हैं ना, वाई बैड थिंग हैपेंस टू गुड पीपल और गुड थिंग हैपेंस टू बैड पीपल। कभी कभी ये हम समझ नहीं पाते, मगर इसके लिए हमें समझना चाहिए शास्त्र के प्रमाण अनुसार कि जो कर्म होता है वो बीज के रोपने के बराबर होता है। जैसे कभी समझो कोई व्यक्ति खेती करता है तो बीज जब रोपता है तो तुरंत फिर उसकी दूसरे दिन हार्वेस्टिंग या फिर खेती नहीं की जाती है, उसको पानी दिया जाता है, उसको बड़ा होने देते हैं, फिर फल लगते हैं, फिर उसकी हार्वेस्टिंग होती है। तो कर्म का भी ऐसा ही सिद्धांत होता है। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, गाँव में पहले आपको पता होगा, गाँव में क्या होता था, कोई भी फसल आती थी तो फसल को काट के गाँव में एक मेटेलिक बिन रहते थे, उसमें पूरा अनाज दिया रख दिया जाता था, और नीचे एक होल रहता था, तो कभी भी अनाज चाहिए तो उस होल से निकाल देते थे। तो समझो, तो पिछले साल अच्छी फसल हुई तो अच्छा गेहूं निकल रहा है, और इस साल फसल अच्छी नहीं हुई है, तो मगर उस फसल को ऊपर ऊपर लाद दिया जाएगा, उस अच्छे फसल के अंदर डाल दिया जाएगा। तो समझो कोई व्यक्ति, उसका बेटा, वो खेडूत का बेटा उसको कहेगा कि पिताजी इस बार तो हमारी खेती अच्छी नहीं हुई, तो भी हम तो अच्छा अनाज पा रहे हैं, क्योंकि जब निकालते हैं उस बिन से तो अच्छा फसल नहीं। तो उसका पिताजी बोले, बेटे ये जो हम निकाल रहे हैं अनाज वो पिछले साल का है, और समझो तीसरे साल में अच्छी अनाज का फल हुआ और उसको ऊपर फिर से लादा डाल दिया है, मगर तब तक वो दूसरे साल का जो गंदा फसल था, मतलब थोड़ा अच्छा फसल नहीं था, उसको खा रहे हैं। तो वो सोच रहा है भाई इस साल तो फसल अच्छी हुई थी, मगर हम तो जो गेहूं प्राप्त कर रहे हैं वो तो अच्छे नहीं है। तो इसका अर्थ ये है कि जो हमारा ये जो कर्म के सिद्धांत होते हैं वो है ना, पिछले जन्म के भी सिद्धांत, पिछले जन्म के कर्मों को भी ध्यान में रख के दिए जाते हैं। हमारा क्या ध्यान में है, कोई व्यक्ति सोचता है हम ऐसे खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे, हम सुनते भी है, मगर कभी कोई खाली हाथ आता नहीं और खाली हाथ जाता नहीं है। वो अपने कर्म को लाद के जाता है, कर्म को कैरी फॉरवर्ड होते हैं, हमारे कर्म लेके जाते हैं। हम जब मरते हैं हम अपने कर्म लेके जाते हैं, और कर्म फिर पूर्व जन्म के कर्म लेके भी आते हैं। तो कोई खाली हाथ आता नहीं है, कोई खाली हाथ जाता नहीं है। ये हमारे कर्म के हिसाब से, हमारे पूर्व जन्म के कर्म के हिसाब से हमें मिलता रहता है। तो यही समझना हमें बहुत जरूरी है कि जैसे कि अभी एक आपने सुना होगा, नेपोलियन बोनापार्ट करके एक बड़ा राजा था, पूरी दुनिया में उसने शासन किया था। तो जब, और बहुत अत्याचार भी करता था, तो सोचने उसको पूर्व जन्म के अच्छे कर्म है इसलिए वो शासन कर रहा है, मगर उसका मृत्यु कैसे हुई? एक जेल में, एक आइलैंड में जाके उसकी मृत्यु हो गई, किसी ने उसको मार। तो कहने का मतलब उसको फिर जैसे अच्छे कर्म खत्म होते हैं, उसके फल खत्म होते हैं, तो पूरे बुरे कर्मों का भी फल भुगतना पड़ता है। तो इस हिसाब से हमें देखना पड़ता है कि पूरा पूरा पिछले जन्म का, इस जन्म का पूरा कर्म का लेखा जोखा होता है। हमारा क्या सोचना है भाई, इस बर्थ टू डेथ, हम इस जन्म लिया और यहाँ से मरे, हमने इसमें क्या कहा, मगर है ना, कर्म का जो लेखा जोखा होता है इस जन्म के पहले का भी होता है, बाद में का होता है। तो B2D हमारा विजन, जो हमारा जो दृष्टिकोण है कर्म के हिसाब से, वो क्या है, छोटा है, कि हम सोचते हैं इस जन्म से इस मृत्यु तक। नहीं, हमारा जो कर्म का हिसाब है वो पिछले जन्म का भी होता है, उसके पिछले जन्म का भी, बहुत जन्मों का आगे पीछे का सब कुछ मिला के हमको कर्म का फल मिलता है। तो भगवान का जो कर्म का जो सिस्टम है वो पूरा पूरा देख के बताया जाता है। तो हमारा जो विजन है वो बहुत छोटा है। इसलिए तो कभी कभी कहते हैं, तो कोई व्यक्ति नहीं सोचता है कि इस आदमी ने तो पूरी जिंदगी में कुछ खराब खराब किया नहीं, तो इसको कैसे इतना गलत मिल गया। उसका रीजन है क्योंकि उसे पूर्व जन्म का हिसाब होता है। तो इसको ध्यान में रख के हमें समझना चाहिए कि भाई ये होता है। तो कोई प्रश्न, कोई कह सकता है अच्छा समझ गया चलो, मगर हमारा प्रश्न ये है, कोई पूछ सकता है कि भाई ये कैरी फॉरवर्ड का बिजनेस क्यों है?
जो कर्म जहाँ करे उसको यही खत्म कर दो, तो हमारा ये इतना बड़ा कैलकुलेशन कर रहे हैं, हमको भी समझने का तकलीफ नहीं, और भगवान जो ये सब कैलकुलेशन करके उसका भी टेंशन नहीं। तो इसको ये कैरी फॉरवर्ड के बिजनेस को यही खत्म कर दो ना, कोई सोच सकता है ऐसा। मगर हमें समझना चाहिए एक चीज, जैसे कि ये जो बीज कर्म हम बीज के समान होता है, तो हर बीज को फ्रुक्टिफाई होने, मतलब उस बीज को बड़ा होने में अलग अलग समय लगता है। जैसे कि देखो, आम का फल होता है, तो आम का बीज जब डालते हो तो आम तुरंत नहीं लगते, उसको 5-6 साल लग जाते हैं तब उस आम लगने के लिए। कभी कभी मगर वो चोखा क्या बोलते हैं वो, राइस, उसको तो 4 महीने में राइस आ जाता है। कोई कोई जैक फ्रूट का जो ट्री होता है, या फिर वो कोकोनट का ट्री होता है, नारियल का ट्री, उसको तो 10-12 साल लग जाते हैं नारियल आने में। तो कहने का मतलब हमारे कर्म है ना, एक बीज के समान है। वो बीज है ना, जैसे जैसे अलग अलग बीज अपना अपना फल देते अलग अलग समय पे, तो हमारे अलग अलग कर्म अलग अलग टाइम पे बीज देते हैं। तो इस तरह से एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। कोई व्यक्ति अगर आइसक्रीम खूब खा लेता है रात को, तो उसको तुरंत दूसरे दिन उसको जुकाम या फिर सर्दी हो जाती है। मगर कोई व्यक्ति देखो, तो तुरंत फल मिल गया ऐसे ऐसे कर्मों का। मगर कोई व्यक्ति होता है जो सिगरेट पीता है, मगर एक दिन सिगरेट पीने से दूसरे दिन उसको लंग कैंसर ऐसा कुछ हो जाने लगेगा, उसको शायद तक 20-25 साल तक वो सिगरेट पिएगा, तब जाके उसको लंग कैंसर होगा। तो मतलब कहने का मतलब हमारे जो कर्म होते हैं वो ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होते कि भाई आज कर्म के तुरंत उसकी सजा है। हर अलग अलग कर्मों के अलग अलग उसकी बीज का फल उगने का समय होता है। तो इससे हम एक शास्त्र का एग्जाम्पल लेके भी समझ सकते हैं। जैसे कि शास्त्र में कहा गया है कि महाभारत में ऐसी कथा आती है, धृतराष्ट्र जो थे वो अंधे थे, उनके 100 पुत्र थे। तो कलयुग के पहले ऐसा था नियम कि कोई भी पिता अपने पुत्र के पहले, पुत्र कभी पिता के पहले नहीं मरेंगे। तो धृतराष्ट्र ने एक बार व्यास जी को पूछा कि प्रभु ऐसा कैसे हो सका कि मेरे पुत्र मेरे पहले मर गए? तो ये तो संभव नहीं है, क्योंकि अभी कलयुग तो आया नहीं है। कलयुग में ऐसा होता है कि पिता के पहले पुत्र मर गया, मगर कलयुग के पहले ऐसा कभी होता नहीं था कि पिता कभी पिता के पहले पुत्र मर जाए। तो उन्होंने पूछा व्यास जी को, कैसे कैसे हो गया कि मेरे 100 के 100 पुत्र मेरे आंखों के सामने मर गए? तो व्यास जी उनको बताया कि 50 जन्म पहले तुम एक हंटर थे, एक शिकारी थे, और तुमने एक बतख को, एक पक्षी को अपने उनके बच्चों के साथ मार दिया गया था, उनके आंखें फोड़ के। तो तुम्हें ये 100 उसके जो पक्षी के 100 बच्चे थे सबको मार दिया था तुमने, और उसकी आंखें फोड़ दी थी। तो तुमको ये सजा मिल रही है अभी। तो धृतराष्ट्र बोले समझ गया, चलो मैंने अपने पाप किए थे, मैं शिकारी था और मैंने 100 एक पक्षी के 100 बच्चों को मार दिया था उसकी आंखें फोड़ के, तो मैं समझ गया। मगर मेरा प्रश्न है कि मुझे तो तुरंत दूसरे जन्म में सजा मिल जानी चाहिए ना। मुझे 100 जन्मों के बाद या 50 जन्मों के बाद क्यों मुझे सजा मिली इतनी? तो व्यास जी ने बोला सुनिए, ये इसका जवाब ये है कि चलो माना कि आपको 50 साल के, मगर पुत्र होना एक एक बहुत पुण्य के बाद पुत्र होते हैं। तो कहने का मतलब 100 पुत्र होने के लिए आपको इतना पुण्य भी इकट्ठा करना पड़ेगा कि आपको 100 पुत्र हो। तो उस पुण्य को इकट्ठा करने के लिए आपको 50 जन्म लग गए, तब जाके आपके 100 पुत्र हुए, और तब आपको आपकी सजा मिली कि आपके 100 पुत्र मर गए, और 100 पुत्र आप अंधे भी हुए, और आपके 100 पुत्र आपके सामने मर गए। तो ये जो ये कर्मों की जो गुत्थी है वो बहुत ही जटिल है, बहुत ही मतलब बहुत ही जटिल है। इसको समझना बहुत ही मुश्किल है। कोई व्यक्ति इसको आसानी से समझ नहीं पाएगा। इसके लिए बहुत ही तो कोई कह सकता है चलो चलो हम समझ गए आप जो कह रहे हो, हम आप जो समझा रहे हो कर्म के बारे में कि कर्म के सिद्धांतों के बारे में हम समझ गए। मगर ऐसा एक प्रश्न उठता है कि जो व्यक्ति को एक कर्म के सिद्धांतों के बारे में ज्ञान नहीं है, उसका क्या? जिसको ज्ञान हो गया तो चलो वो ऐसे कार्य नहीं करेगा कि ऐसे अच्छे कार्य करेगा और बुरे कार्य नहीं करेगा। मगर जो व्यक्ति अज्ञान है उसका क्या? तो अंग्रेजी में कहावत कहते हैं कि इग्नोरेंस इज नॉट एन एक्सेप्शन, मतलब अज्ञानता कोई आपको परमिशन नहीं देता कि आपको कुछ भी कार्य करिए। जैसे कि कोई बोल सकते हैं तो कोई कोई सिग्नल पे खड़ा है, चौराहे पे खड़ा है, और वहां पे रेड सिग्नल है, मगर वो तोड़ के निकल गया, और आगे जाके किसी पुलिस वाले ने पकड़ा, भाई क्यों रेड सिग्नल तोड़ा? तो ऐसा नहीं बोल सकता है कि भाई मुझे पता नहीं था। नहीं, आपको पता होना चाहिए। तो इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज। कि कर्म के सिद्धांतों के बारे में आपको पता नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि आपको छोड़ दिया जाएगा। दूसरा एग्जांपल दे दो, कोई व्यक्ति समझो कभी 5 स्टार होटल में गया नहीं,
फिर वो जाता है 5 स्टार होटल में और कहता है कि भाई मुझे पनीर टिक्का दीजिए, नान दीजिए, मुझे स्मूथी दीजिए, मुझे ये जूस दीजिए, और बड़ा सा पूरा प्लेट मंगवाता है और खूब खाता है। फिर वो उठने की तैयारी करता है, तब उतने में वेटर आता है, उसको बिल देता है और बोलते हैं सर बिल भरना है। तो कोई ऐसा बोलेगा कि सर बिल भरना होता है, मुझे तो पता नहीं है। तो फिर क्या होगा? पुलिस बुलाई जाएगी। तो कोई ऐसा नहीं कह सकता मुझे पता नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि इसका क्या परिणाम होता है। तो इग्नोरेंस इज नॉट एन एक्सक्यूज। अज्ञानता ये कोई आपको ये छूट नहीं देता कि आप कुछ भी करिए, कोई भी करिए। तो यही समझना है हमें कि अज्ञानता के कारण हम पहले तो ये समझते हैं कि हमें दुख क्यों होते हैं। बहुत बड़ा सिद्धांत है हमें समझनी, हमें दुख क्यों होते हैं। दुख इसलिए होते हैं कि हम पाप कार्य करते हैं। हमें समझ, कभी भी जीवन में दुख आए तो समझ लेना है कि हमारे कोई पाप कार्य हमने पूर्व जन्म में किए हैं, उसके हिसाब से हमको दुख मिल रहे हैं। अच्छा, तो कोई पूछेगा तो हम पाप क्यों करते हैं? तो पाप इसलिए करते हैं क्योंकि हमें ज्ञान नहीं है, अज्ञानता के कारण हम पाप करते हैं। अच्छा, अज्ञानता के कारण पाप करते हैं। तो પછી उसका सॉल्यूशन क्या है? तो उसका सॉल्यूशन है कि जैसे कि अभी अंकित गुप्ता जी ने अभी ये थोड़े इस सेशन का या ये प्रोग्राम का अरेंजमेंट किए। ये प्रोग्राम का अरेंजमेंट क्यों किया जाता है? क्योंकि हमें ये ज्ञान मिले कि हमें किस तरह से वर्तन करना है, हमें किस तरह से कर्म करना है। तो भगवान अपने भक्तों के द्वारा ये सब है ना अरेंजमेंट करवाते हैं कि सामान्य जनता के सामान्य जीव किस तरह से भगवान के पास आ पाए, उनको कैसे ज्ञान मिले और उस ज्ञान की उपयोग करके वो कैसे भगवान के पास चले जाए। तो हमें ये भी समझना है कि भगवान का कार्य सिर्फ इतना नहीं है कि किसी को सजा देना है, किसी को सजा से मुक्त करना है। ये भगवान का कार्य नहीं है। भगवान एक परम पिता है। भगवान का ये भी कार्य है कि हर जीव सब कुछ पापों को छोड़ के अच्छे कर्म करके भगवान की अपनी भक्ति करके वो भगवान के पास वापिस आ जाए। ये भगवान का है। तो भगवान ने इसके लिए खास करके कलयुग में इसका उपाय लिया है। और इसका एक कथा आती है श्रीमद् भागवतम में, पंचम स्कंद के लास्ट अध्याय में, एकदम अंतिम अध्याय में। वहां पे क्योंकि हम सबको पता होगा कि भागवतम है ना, सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को कही गई थी। तो श्रीमद् भागवतम के पंचम अध्याय में, 5वें अध्याय में जो लास्ट अध्याय है, अंतिम अध्याय, उसमें सुखदेव गोस्वामी 28 नरकों का वर्णन करते हैं। 28 नरकों का, 28 नरकों का वर्णन करते हैं। कुंभीपाक, रौरव, महारौरव, बहुत प्रकार के नरक है जिसमें कोई कैसे पाप करता है उस हिसाब से उसको सजा मिली जाती है उस नरकों में। तो परीक्षित महाराज स्वाभाविक भगवान के भक्त थे, तो उनको चिंता होने लगी कि ये जीव इतना दुख प्राप्त करेगा, इतना सारा दुख है नरकों में, तो इस नरकों में जाने से कैसे रोका जाए जीवों को। क्योंकि हम देखते हैं कि सामान्य जीव बहुत ही पाप करता है, खास करके कलयुग में। तो परीक्षित महाराज ने एक प्रश्न पूछा है 5वें अध्याय में। जब ये सुन लिया नरकों के वर्णन, तो उन्होंने 6ठे अध्याय के पहले अध्याय में, 6ठे स्कंद के पहले अध्याय में एक प्रश्न कि हे सुखदेव गोस्वामी, इस नरकों में से जाने के लिए सब जीवों को कैसे रोका जाए। तो सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि भाई तपस्या करनी चाहिए। बहुत सारे उत्तर दिए, जैसे तपस्या करनी चाहिए, ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, कि फिर अलग अलग प्रकार के, जैसे कि दान देना चाहिए, तपस्या करनी चाहिए, वैराग्य करना चाहिए, मन बुद्धि को कंट्रोल, ऐसे बहुत सारे उत्तर दिए। मगर परीक्षित महाराज खुश नहीं थे, क्योंकि ये, हाँ, शास्त्रों में कर्म कांड के हिसाब से बहुत सारे उपाय दिए गए हैं कि हम जब भी कोई पाप करते हैं उस पापों से मुक्त होने के लिए कर्म कांड के वैदिक शास्त्रों में हमारे उपाय दिए गए हैं। मगर उससे होता क्या है, जो शास्त्रों में जो उपाय दिए गए हैं कर्म कांड में, कि ये पाप को मुक्त करने के लिए इसका ऐसा प्रायश्चित करोगे तो इस पाप से मुक्त हो जाओगे, ये पाप से मुक्त होने के लिए ये प्रायश्चित करोगे तो ये इससे मुक्त हो जाओगे। तो शास्त्रों में बहुत सारे उपाय दिए हैं, कर्म, ज्ञान, तपस्या, ये सब क्या उपाय है। मगर परीक्षित महाराज कहते हैं कि मेरा प्रश्न है कि पाप की प्रवृत्ति से कैसे बचा जाए। पाप से तो बचा जा सकता है, मगर पाप करने की प्रवृत्ति, अभी क्या होगा, पाप की प्रायश्चित करके पाप से मुक्ति हो गई, मगर फिर से पाप करेगा वो। तो ये तो हाथी स्नान जैसा हो गया। हाथी क्या करता है, स्नान करता है, फिर तुरंत जाके दूसरी बार है ना बाहर जाके अपने मिट्टी से अपना शरीर को ऐसे धूल वाला कर देता है। तो मतलब ये तो हाथी स्नान जैसा हो गया कि पाप करो, प्रायश्चित करो, पाप से मुक्त हो जाओ। मगर भगवान का जो शुद्ध भक्त होता है ना, वो बहुत समझदार होता है। वो क्या बोला, पूछा परीक्षित महाराज ने सुखदेव को, मुझे ऐसा सॉल्यूशन दीजिए जो पाप की प्रवृत्ति को ही शांत कर दे और उसको ही समाप्त कर दे। जब पाप की प्रवृत्ति नहीं रहेगी तो पाप करेगा नहीं, पाप नहीं करेगा तो कभी दुख नहीं भोगेगा, और दुख नहीं भोगेगा तो भगवान के धाम पे जाने का उसको सुलभ अवसर मिलेगा। तो ये तो हो गया
तो पाप की प्रवृत्ति कैसे समाप्त की जाए उसका उत्तर देते हैं सुखदेव गोस्वामी कि भगवान के भक्ति करने से। भगवान की भक्ति इतनी सफलता से की जाती है, और खास करके कलयुग में। पहले तो क्या थे, लोग तपस्या करते थे, ये करते थे, वो। कलयुग में खास करके भगवान ने अपने नामों में संपूर्ण शक्ति कर। भक्ति के 9 प्रकार होते हैं, उसमें से एक होता है श्रवणम कीर्तनम। ये जो हमने अभी थोड़ा कीर्तन किया, कीर्तन का मतलब होता है भगवान के नामों का कीर्ति का गान करना, और संकीर्तन का मतलब जब सब इकट्ठा होकर सम्यक रूपे न कीर्तन, सब इकट्ठा होकर जब कीर्तन करते हैं या भगवान का नाम लेते हैं, तब उसको संकीर्तन कहते हैं। तो ये जो भगवान की भक्ति है उसके 9 प्रकार थे। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम दास्यम साख्यम आत्म निवेदनम। ये 9 प्रकार की जो भक्ति होती है, तो कोई भी प्रकार की, एक भी प्रकार की कोई भी व्यक्ति भक्ति करता है वो भगवान को प्राप्त करता है। उसमें से ये सबसे कलयुग में कही जाती है कि सबसे स्ट्रांग है भगवान का नाम, और भगवान के नाम में भगवान ने इतनी शक्ति भरी हुई है। ऐसा कहते हैं शिष्टाष्टम में चैतन्य जी, नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमिता न स्मरेण काले एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवमिदृशम यहाँ जनिनानुरागम। वो कहते हैं कि भगवान ने अपने नामों में इतनी शक्ति भर दी कि कोई भी व्यक्ति, इसमें कोई नियम भी नहीं है, इतनी कठोर नियम भी नहीं है, कोई भी व्यक्ति नाम लेगा वो भगवान को पा जाएगा। तो उसके लिए श्रीमद् भागवतम में जब ये परीक्षित महाराज ने प्रश्न पूछा कि कोई उदाहरण बताइए भगवान के नाम का, कोई ऐसा कोई एग्जाम्पल तो दीजिए, तब सुखदेव गोस्वामी ने एक छोटी सी कथा कही है श्रीमद् भागवतम के 6ठे स्कंद के पहले, दूसरे और तीसरे अध्याय में, अजामिल नाम के एक ब्राह्मण के विषय में। एक ब्राह्मण था जो कान्यकुब्ज करके एक नगर में रहता था, कान्यकुब्ज करके एक गांव में रहता था। आज उसको प्रेजेंट डे में उसको कन्नौज कहते हैं, यूपी में पड़ता है कन्नौज। और कन्नौज के ब्राह्मण बहुत प्रख्यात भी रहते हैं। आज तो कन्नौज में शायद तक इत्तर भी बहुत फेमस है, कन्नौज का इत्तर। तो ये जो ब्राह्मण था अजामिल नाम की, जो कथा अभी सुखदेव गोस्वामी कहने जा रहे हैं, वो कन्नौज का था, और वो खूब अच्छा ब्राह्मण था, बहुत सज्जन था, अपने पिता की आज्ञा का पालन करता था, यज्ञ करता था, तपस्या करता था। एक बार उसके पिताजी ने कहा कि बेटे जाओ और जंगल में जाके लकड़ियां काट के आओ यज्ञ के लिए। तो जब ये यजामिल वो जाते हैं जंगल में लकड़ियां काटने, यज्ञ के लिए लकड़ियां बटोरने, तब वो एक वैश्या को देखते हैं, एक शूद्र के साथ संग करती है। तो उनकी बुद्धि वही गुम जाती है। वो जब देखने जाते तो वो पहले तो सोचते कि नहीं नहीं नहीं, मुझे ये देखना नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे तो ये संस्कार दिए नहीं गए मेरे पिता के द्वारा। तो पहले तो वो अवॉइड करते हैं, मगर फिर वो देखते हैं, फिर जैसे तैसे करके वापस आते हैं, तो अपने पिताजी के कार्य में लगने लग जाते हैं। मगर उनका एक बार वो देख लिया होता है कि अच्छा, तो वो फिर गांव में इंक्वायरी करते हैं, सबको पूछते हैं कि वो वैश्या कहाँ रहती है, उसका एड्रेस क्या है। फिर वो उसका संग करने का प्रयत्न करते हैं, और एक दिन ऐसा होता है कि बहुत दिनों के चिंतन के बाद उसको फाइनल लगता है कि हमें भगवान, वो मुझे है ना उस वेश्या का चिंतन कर, उसका संग करना जरूरी है। तो यहाँ पे मैं रोकूंगा और एक सिद्धांत को समझाने की कोशिश करूंगा। देखो, हम कभी भी कुछ देखते हैं गलत चीजें, तो हम वो एंटर कैसे होती है, हमारी नौ एक आंख से, नाक से, ये हमारी एक गेट है, यहाँ से हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो हमें देखना बहुत जरूरी है, ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि हम कुछ भी देखें वो भगवान के सिद्धांतों के खिलाफ, धर्म के सिद्धांत के खिलाफ जो भी हो उसको नहीं देखना है। और अगर ऐसी गलत चीजें देखे नहीं, खास करके आज देखे जाते हैं टीवी में, टेलीविजन में कितनी सारी अलग उल्टी सीधी चीजें होती है, तो हम जब ये ग्रहण करेंगे तो हमारा फिर माइंड कैचअप कर लेगा। तो हमें ऐसी कुछ भी उल्टी सीधी चीजें नहीं देखनी। तो यजामिल के साथ यही हुआ। तो उसने कभी ऐसा गलत चीज नहीं, मगर एक बार गलत चीज देखने से उसके हृदय में बैठ गई। फिर एक दिन वो उसने महीने 2 महीने में उस वेश्या का कांटेक्ट किया, उसके परिचय लिया, फिर उसके साथ संग करने लगा, उसके साथ बातें करने लगा, उसको घर में लेकर आ गया, और उसके माता पिता को भगा दिया, पत्नी को भगा दिया, और उस वैश्या के साथ रहने लगा। उस वैश्या से उसने 10 पुत्रों की उत्पत्ति की। उस वैश्या सभी प्रकार के जो अच्छे कार्य उसने छोड़ दिए, सभी प्रकार का, फिर घर चलाने के लिए लूट फाट, चोरी डकैती, ये सब करने लगा आजा में। तो ब्राह्मण से क्या बन गया, शूद्र के हिसाब, शूद्र जैसा बन गया। जस्ट बाय सीइंग, खाली एक शूद्र को देख के और एक वैश्या को देख के यार ये पतन हो सकता है। तो फिर वो अपने उस वैश्या के साथ रहने लग गया, 10 पुत्र हो गए उसको। मगर उसने एक चीज अच्छी की थी कि उसने अपने लास्ट जो अंतिम पुत्र था, छोटा सा पुत्र, उसका नाम उसने रखा था नारायण। नारायण इसलिए रखा था
कि ऐसा कहा जाता है कि एक दिन उसके घर पे साधु संत आए थे और उन्होंने सजेशन दिया था कि इस छोटे बच्चे का नाम नारायण, इसलिए तो हमें क्या करना चाहिए, कभी भी घर में कोई बच्चे आते हैं तो हमें पहले उनका नाम क्या रखना, भगवान के संबंधित रखना चाहिए। तो यही उसने किया था। तो उसकी बड़ी आसक्ति थी यजामिल की, वो 80 साल का बूढ़ा हो गया था उस टाइम पे, तो अपने बच्चों को बुला रहा था, हे नारायण क्या करता है, मेरे गोद में आके बैठ, नारायण तूने खाया, नारायण तूने पानी पिया, नारायण तूने ये किया। तो हर रोज वो नारायण नारायण कहता रहता था और नारायण को उसके बच्चे को बुलाता था। भगवान का नाम भले नारायण, मगर वो अपने बच्चे को बुलाता रहता था। तो इस हिसाब से वो हुआ क्या कि उसने, अब उसका तो समय हो गया था, ऐसे 80 साल का हो गया था बूढ़ा, और पाप भी बहुत किए थे उसने। तो यमदूत, तो एक बार यमदूत आए, 3 यमदूत आए उनको लेने के लिए यजामिल को, और उनको उसको यमपाश में बांध के ले जा रहे थे क्योंकि उसका, मगर ऐसे कहते हैं शास्त्र में, जब भी यमदूत आते हैं तो हमें नहीं दिखते, मगर जो मरने वाला होता है, जो डेथ बेड पे होता है, जो अंतिम घड़ी अपनी सांस की गिन रहा होता है, उसको वो यमदूत दिखते हैं। और इसी हिसाब से देखो कभी कभी ऐसा होता है कि देखो हमारे प्राण है ना, हमारे जो आत्मा, हमारे 9 द्वार से कभी भी चले जाते हैं, तो किसी के आंख से जाते हैं तो उसकी आंख ऐसी रह जाती है, क्यों? क्योंकि, तो समझ लेना कि कभी कोई मर जाता है, उसकी आंख बड़ी हो जाए तो समझ लेना कि वो आत्मा है ना, आंख से निकल गई है। कभी कभी कोई व्यक्ति मरता है तो ऐसे मरता है तो समझ लेने का उसका मुंह से वो आत्मा निकल गई है। तो कान से भी निकल सकती है, नासिका से भी निकल सकती है, और खास करके जो व्यक्ति बहुत पापी होता है, और तो उसकी है ना, बाथरूम जाने की जगह से या फिर शौच जाने की जगह से भी आत्मा निकल सकती है। इसलिए कभी कभी देखते हैं, क्योंकि वो डर जाता है, क्योंकि उसमें जब यमदूत देते हैं तो उतने भयंकर होते हैं, उसके नाखून होते हैं, ऐसे बाल होते हैं बड़े बड़े, और ऐसे दांत होते हैं। वो देख सके कि वो उतना पाप किया है पूरी जिंदगी, तो उसके मल मूत्र के साथ उसका प्राण निकल जाता है। तो कभी कभी देखते हैं तो कोई व्यक्ति का मल मूत्र भी निकल गया होता है कभी मरने, तो इससे समझ लेना चाहिए कि उसका आत्मा वैसी जगह से निकल गया है। मगर यूजुअली व्यक्ति का मुंह से निकल जाता है, इसलिए उसके मुंह है ना, नॉर्मली लोगों के मुंह खुले रहते हैं या फिर आंख से निकल जाता है। हाँ, तो वो व्यक्ति जब यमदूतों को देखा कि यमदूत तो आ गए मुझे लेने के लिए, तो इतना डर गया, तो फिर वो अपने बच्चे को बुलाने लगा, नारायण नारायण, असल में अपने बच्चे को बुला रहा है। तो जैसे उसने नारायण नारायण शब्द का उच्चारण किया, तुरंत भगवान के विष्णु दूत वैकुंठ से आ गए और तुरंत उस यमदूतों के साथ बातचीत करने लगे, भाई इस महात्मा को छोड़ दो। तो यमदूत कहने लगे, महात्मा, ये तो इतना बड़ा पापी है, इसका तो पूरा लेखा जोखा देखा जाएगा, तो इतना सारा पाप किया, इसको तो कैसे आप महात्मा बोल रहे हो? तो विष्णुदूत बोले, भाई भगवान का जो एक बार भी नाम लेता है वो सभी प्रकार के पाप से मुक्त हो जाता है। तो इसने तो नारायण, तो बोले नारायण का नाम तो लिया, तो बोले कि नहीं, मगर नारायण तो उसके बेटे का नाम है, क्योंकि वो नहीं देखना है, वो नामाभास होता है, अभी भगवान का नाम तो उसके मुख से निकल गया इसको। तो वही विष्णु दूतों ने उसको वार्निंग दे दी, यमदूतों को, यहाँ से निकल जाओ, वरना तुम्हारी पिटाई कर देंगे, तुम्हें ही पहुंचा देंगे यमपुरी। तो विष्णुदूत के इस धमकाने से यमदूत तो भाग गए वहां से। और ये जो वार्तालाप हो रहा था यमदूत और विष्णुदूत के बीच में, तो यजामिल बैठ के बीच में ऐसे सोच रहा था, ये मेरी बातें कर रहे हैं लोग। तब उसको ज्ञान आ गया सब कुछ, अच्छा मैंने इतने सारे पाप किए थे, और मेरे पापों के कारण मेरे को विष्णु यमदूत लेने आए, मगर मैंने नारायण का नाम लिया तो विष्णुदूत आ गए। तो उसको तुरंत ज्ञान हो गया और तुरंत उसने भगवान की भक्ति चालू कर दी, और यमदूत तो चले गए और भगवान विष्णुदूत भी चले गए थे। तब यमदूत, और वो फिर ऐसा लिखा है शास्त्र है श्रीमद् भागवतम में कि वो तब 80 साल का था, फिर उसने 8 साल तक वो हरिद्वार चला गया था और भगवान की खूब भक्ति की। फिर वहां से फिर विष्णुदूत उनको लेके भगवान के धाम में गए थे। मगर यहाँ कथा खत्म नहीं होती। यमदूत गए यमपुरी, यमराज के पास, और एकदम तड़क भड़क के बहुत गुस्से में गए, यमराज को कहने लगे, लगता नहीं है कि अभी आपकी सत्ता का कोई ऐसे कोई वैल्यू रही है। तो यमराज ने बोला, क्या हुआ? कुछ पूछो मत, हमें तो लग रहा था कि आप ही सबसे बड़े ईश्वर हो, आपके सत्ता के सामने किसी की नहीं चलती, मगर आज तो हमारी, अभी हम तो मरते मरते रह गए। तो यमराज ने कहा कि क्या हुआ भाई? बोले, भाई आज तो ऐसी आफत आ बैठी थी, तो शायद तक हम ही मर जाते। तब उन्होंने पूरी कथा सुना के बताई कि यजामिल नाम के एक व्यक्ति को, जो बहुत पापी था, उसको लेने गए थे, मगर अंतिम में उसने नारायण का उच्चारण किया और विष्णुदूत आए और उसको लेके उसको छुड़ा के चले गए। तो हम तो बहुत घबरा गए, तो हमें तो लगता था कि, तो पहले हमें बताइए कि इस संसार का मालिक कौन है? हमें तो लगता है आप संसार के मालिक हैं। तो यमराज ने कहा कि सुनिए, रुकिए रुकिए रुकिए, मैं पूरी बात समझ गया, आपको समझा। हाँ, मैं पूरी सृष्टि को कंट्रोल करता हूँ, क्योंकि मैं ही मृत्यु का
अधिष्ठाता देव हूँ, मगर मेरे भी स्वामी है, मेरे स्वामी स्वयं हरि नारायण कृष्ण है मेरे स्वामी। जब कोई भी व्यक्ति, फिर उनको ट्यूशन दिया गया, सुनिए, आपको मैंने नॉर्मल धर्म समझाया था कि जो पाप करता है उसको सजा दी है, पुण्य करता है उसको स्वर्ग में लगे, मगर एक बड़ा धर्म होता है, उसको बोलते हैं भागवत धर्म। अब तक आपको नॉर्मल टीचिंग दी गई थी, ट्यूशन आपको दिया नहीं गया था भागवतम। तब जाके यमराज ने उनको शिक्षा दी है, छठे स्कंद के तीसरे अध्याय में। उस अध्याय का नाम है यमराज द्वारा दी गई शिक्षा है यमदूतों को। तो उसमें शिक्षा देते कि आपको भागवत धर्म के विषय से मैं बता दूं, ये स्पेशल धर्म है। इसमें ये होता है कि स्वाभाविक है, कोई व्यक्ति खराब कार्य करता है उसको नरक में ले जाता है, अच्छा कार्य करते हैं उसको स्वर्ग में लेके जाते हैं। मगर भागवत धर्म ये कहता है कि जो भी व्यक्ति भगवान का नाम लेता है, एक बार भी भगवान को प्रणाम करता है, एक बार भी भगवान का नाम लेता है, उसे कभी छूना नहीं, उसके नजदीक जाना नहीं है आपको। तो ये यमराज की वार्निंग है यमदूतों को कि जो भी व्यक्ति भगवान का नाम लेता है, गले में कंठी माला धारण करता है, शिखा धारण करता है मस्तक में, और कपाल पे भगवान का तिलक धारण करता है, भगवान यमराज का वार्निंग है उनके यमदूतों को, इन लोगों के पास दूर में भटकना भी नहीं है आपको, दूर से प्रणाम करके निकल लो। ये यमराज की श्रीमद् भागवतम में उनको वार्निंग है। तो इसलिए हमें ये शिक्षा लेनी चाहिए इस कथा से कि इस कर्म के जंजाल से मुक्त होना हो या फिर सभी पापों से मुक्त होना हो हमें, और भगवान का प्रेम प्राप्त करना हो, तो एकमात्र उपाय है भगवान की भक्ति। और उसमें भी भक्ति में भी सबसे सरल कार्य है भगवान का नाम लेना। ये न के न प्रकार में हम भगवान का नाम कैसे भी लेंगे तो भी वो भगवान का हमें फल, भगवान के नामों का फल मिलता है। जैसे कि कोई व्यक्ति कह सकता है कि मैं श्रद्धा नहीं है, मगर हाँ, श्रद्धा होनी चाहिए, मगर अगर नहीं भी होगी तो भी, जैसे कि एक टैबलेट है, किसी को पेट में दर्द हो रहा है और या फिर सर दर्द हो रहा है और उसको टाइनानोल या फिर कोई ऐसे दवाई दी जाएगी, उसको श्रद्धा नहीं है, मगर वो तो दवाई लेगा तो तुरंत उसका तो काम करेगा ही। उसी प्रकार से कोई श्रद्धा हो तो और अच्छा है कि वो मेंटली भी प्रिपेयर रहे, मगर कोई श्रद्धा नहीं तो भी उसका अपना काम। तो भगवान का नाम इतना पवित्र है कि यहाँ तक कि समझो, कोई नामाभास, नाम भी नहीं, नामाभास, नाम में आभास हो जाए, जैसे कि वो कहना नहीं चाह रहा है भगवान का नाम, मगर जैसे ह राम, तो ह राम एक गाली ऐसे देखा जाए तो, मगर उसमें ह राम में राम आ जाता है। वैसे ये तो पीछे के दो नाम है। फिर ऐसे राजमा, राजमा, तो राम के बीच में जा लगा दिया। चलो आज क्या सब्जी बनाई, राजमा की सब्जी बनाई, तो भी उसको भगवान ने इतने सारे रखे गए हैं तो कोई व्यक्ति राजमा भी बोलते हैं तो भी उसको फल मिलता है। या फिर कोई नहीं, चलो भाई मुझे बहुत देर हो, हरियप हरियप, हरि हप, हरि, हरि का मतलब भगवान का नाम, तो वो हरियप भी बोलता है, हरि करो भाई, जल्दी हरि करो। हरि का मतलब ही वो भगवान का नाम आ जाता है। कोई बोलते हैं भाई कहाँ है, दिल्ली के पास में कौन सा स्टेट है, बोले हरियाणा। कौन सा, हरियाणा, हरि। तो ऐसी ऐसी भगवान ने अपने नामों पे इतनी शक्ति रख दी है, कोई व्यक्ति डायरेक्टली भी नहीं, इनडायरेक्टली भगवान का नाम ए न के न प्रकार ने बोल देता है तो भी उसे भगवान अपना नामों का फल देते हैं। तो सोचो भगवान हमको अपने पास बुलाने के लिए कितने बेताब है, कितने आतुर है। तो हमें ही ये प्रयत्न करना चाहिए कि हम, अगर समझो भगवान ने अपने नामाभास में इतनी शक्ति रखी है कि जो भगवान का, जैसे राजमा मैंने बोला, हरियाणा, हरि, फिर सॉरी, सौरी का मतलब विष्णु का एक नाम है सौरी। हर हमें बहुत आदत है सॉरी भाई, सॉरी। सौरी का मतलब ये एक भगवान का नाम है, क्योंकि सूर का मतलब तो देवता, और सौरी का मतलब जो देवताओं के अधिष्ठाता देव है, सौरी तो भगवान का एक नाम ही है सौरी। तो कभी कभी हम कहते हैं सॉरी सॉरी, तो अच्छा है भाई ये सॉरी, क्योंकि भगवान का नाम है ये सौरी। तो इसे, तो भगवान ने अपने नामों में इतनी शक्ति रखी है कि कोई भी व्यक्ति इसका उपयोग, इसका इसका पालन करके, भगवान का नाम का पालन करके, वो भगवान सभी कर्मों से मुक्त हो जाएगा और वो व्यक्ति जाएगा भगवान के धाम पे। और अब आ जाए, हम जो पहले चर्चा की थी शुरुआत में, हम जब चालू किया था, कर्म तो हमने बता दिया था, जो अच्छा कार्य करता है, जैसे कोई परब बना दिए, किसी के पानी के लिए प्याव बना दिए, तो अच्छा कार्य किया तो उस हिसाब से उसको फल मिलता है। किसी को कपड़े दे दिए, किसी को अनाज दे दिया, किसी के लिए धर्मशाला बना दी, किसी को दान दे दिया, तो अच्छे कार्य है शास्त्रों के हिसाब से, तो उसको अच्छा फल मिलता है। मगर कैसा फल मिलता है, वो दूसरे जन्म में मुकेश अंबानी जैसे कोई धनी व्यक्ति के घर पे जन्म लेगा, उसको अच्छे धन, वैसा उसको फल मिल जाएगा, भौतिक फल मिलता है कर्म से। और विकर्म तो हम तो बता दिया कि कोई विरुद्ध कर्म करता है तो उसको नरकों की यातना भुगतनी पड़ती है, पशु योनियों में जन्म रहे। मगर हमने एक तीसरी बात की थी अकर्म के विषय में। अकर्म का मतलब ऐसा कार्य जिसका कोई फल नहीं मिलता है। तो वो कैसे कार्य था, भगवान का नाम या भगवान के संबंधित कोई भी कार्य करना,
उसको कहते हैं अकर्म। क्यों? उसका कोई फल मिलता नहीं है। तो हम कभी कोई भगवान के कार्य, हम जो भी पैसे तो हर कोई व्यक्ति कमाता है, मगर एक भगवान का भक्त वो किस तरह से समझता है कि जो मैं पैसे कमा रहा हूँ भगवान की सेवा के लिए कमा रहा हूँ, या फिर वो कभी भी कोई कार्य करता है वो भगवान की संतुष्टि के लिए करता है, तो वैसे कार्यों का कभी फल मिलता नहीं है। तो जब फल ही नहीं मिलेगा तो उसको दूसरा जन्म होगा ही नहीं। तो हमें क्या करना चाहिए? कर्म करना चाहिए? नहीं। हमें क्या करना चाहिए? विकर्म करना चाहिए? नहीं। हमें अकर्म करना चाहिए, क्योंकि अकर्म से न अच्छा फल मिलता है न बुरा फल मिलता है। अकर्म से हमारे फलों का हमें फल ही नहीं मिलते। कर्म का कोई भी हम देखता है कि कर्म कर रहा है, मगर उसको फल नहीं मिलता है। जब फल नहीं मिलेगा तो दूसरा जन्म ही नहीं होगा। तो इस जन्म मृत्यु के चक्कर को रोकने के लिए कर्म नहीं करना है। तुम कर्म करे बिना तो नहीं, तो हमें कैसे कर्म करना है? अकर्म करना है। तो मैं आशा रखता हूँ कि हर किसी को समझ में आ गया होगा कि हमें क्या करना है। न कर्म भी नहीं करना है, विकर्म भी नहीं करना, हमें अकर्म करना है। और अकर्म क्या है? भगवान की संतुष्टि के लिए काम करना। और सबसे बड़ा कार्य यह है कि भगवान के नामों का उच्चारण करना, और हमारे जो भी दैनिक कार्य है, डे टू डे एक्टिविटी, उसको भगवान को समर्पित कर देना है। तो इससे हमें हमारा जो कार्य करने के बावजूद भी वो अकर्म में गिना जाएगा और उसका कभी फल नहीं मिलेगा, और इससे हम भगवान की पास जा सकते हैं। तो कहने के लिए तो बहुत सारा है, हम मुझे हरिनाम पे बहुत मगर ये 45 मिनट्स का हम यहाँ पे स्टॉप करेंगे यहाँ पे। और किसी का कोई प्रश्न है या उत्तर हो तो वो पूछ सकता है और इस पे हम चर्चा कर सकते हैं। और आशा रखता हूँ कोई थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। आप सब कैमरा ऑन कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं। ये काफी इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, ये जो बात प्रभु जी ने बताया है। 99.9% क्या बाकी लोगों को ये पता ही नहीं है कि कर्म होता क्या है और अकर्म क्या है, बट ये भगवत गीता में स्पष्ट रूप से बताया गया है। प्रभु जी, एक मेरा क्वेश्चन है कि अभी हम देख रहे हैं कि मास लेवल पे लोग मर रहे हैं, राइट, हम्म, कोरोना से। हम्म, तो इसको कर्म के हिसाब से कैसे समझें कि इतने एक एक दिन में 2-2 ढाई-ढाई हजार लोग मर रहा है इंडिया में और बाकी, तो हम्म, इनका मतलब कि जो लोग जा रहे हैं, हम्म, इसको कर्म के हिसाब से कैसे समझा जाए कि क्यों इतना सफरिंग हो रही है? मतलब ये कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी इवेंट है, राइट, अभी जो चल रहा है। या, नॉर्मली लोग मरते हैं डेली, बट जब मास लेवल पे मर रहे हैं इतने, तो इसका मतलब कि कुछ है प्रकृति का, थोड़ा सा। बहुत बहुत ही अच्छा प्रश्न है, क्योंकि अभी हम जिस हिसाब से अभी जो सिचुएशन में हैं, और ये सटीक बैठता है ये जो प्रश्न, क्योंकि अभी सब यही सोच रहे हैं कि इतना बड़ा डिस्ट्रक्शन हो रहा है, इतना सारा लोगों की मृत्यु हो रही है, तो इसको कैसे समझे जाए कर्म के हिसाब से। हम ये तक हमने समझा कर्म के हिसाब से कि भाई आपने जो कर्म किया उसको उसका फल मिलता है इस जन्म में, नहीं तो दूसरे जन्म में। मगर ये तो मास लेवल पे तो डिस्ट्रक्शन है, मास लेवल पे लोगों की मृत्यु हो रही है, तो इसको कैसे समझा जाए। देखो, हमने ना कर्म के 3 पहलू सुने थे। एक है कि यूनिवर्सल है, दूसरा है उसका फल मिल रहा है तो उसका कारण होना चाहिए, और तीसरा वो सटीक है। तो एक चीज समझ लेनी है कि भगवान का जो कार्य है, जो भी ये जो सिस्टम है कर्म का फल देने का, बहुत ही सटीक है। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं तो उससे आप समझ जाओगे। कभी अर्थक्वेक होता है, या फिर लातूर में हुआ था अभी बहुत कुछ सालों पहले लातूर में एक अर्थक्वेक हुआ था, भूकंप हुआ था। बहुत सारे लोग मर गए थे, मगर उसमें एक बच्चा था, छोटा सा बच्चा था, वो पूरी बिल्डिंग गिर गई थी। और 3 दिन तक वो बच्चा, वो सब जब निकाला गया, वो मलबा सब कुछ यहाँ से निकाला गया, वो 3-4 दिन वो छोटी बच्ची इतनी दूध पीती हुई अपने माँ के स्तनों में थी। और वो 3-4 दिन के बाद जब निकाला गया, सब मर गए थे, वो माँ भी मर गई, सब कुछ मर गए, मगर वो बच्ची जिंदा थी। तो ऐसा कैसे कि सब लोग मर गए थे, हजारों लोग मर गए थे, मगर तो कहने का अर्थ ये है कि जो ये जो कर्म के सिद्धांत है वो सटीक होते हैं। ये किसी को भी अननोइंगली कभी किसी की हत्या नहीं, एक मरण नहीं होगा। जिसको जब जहां पे मरना है उस हिसाब से इस तरह से पूरा सिस्टम डेवलप किया जाता है। दूसरी चीज, वो बच्ची नहीं मरी जो बहुत कोमल थी, और ऐसे बड़े बड़े जो हट्टे कट्टे पहलवान या कोई हट्टे कट्टे व्यक्ति भी हो गए, वो सब मर गए थे। तो ये जो सटीक है भगवान का जो चीजें है, एक छोटी दूसरा एग्जांपल देता हूँ। ये भगवान का जो कर्म का सिद्धांत है वो इतना सटीक है, वो कभी ऐसा नहीं होगा कि चलो भाई कोरोना वायरस से कोई ये व्यक्ति नहीं मरना चाहिए था तो वो मर गया, ऐसा नहीं होगा। उसको मरना ही होगा उस टाइम पे, उस हिसाब से वो मरा है। दूसरी चीज, एक छोटा एग्जाम्पल समझो। एक षड्यंत्र रचा है 10 लोगों ने। वो 10 लोगों ने इकट्ठा होके किसी व्यक्ति को मार दिया है, और वो 10 लोगों को सजा नहीं मिली है।
मगर दूसरे जन्म में वो व्यक्ति फिर से इंसान बने और अलग अलग देशों में चले गए। कोई जापान में जन्म ले लिया है, कोई अमेरिका में जन्म ले लिया है, कोई इंडिया में जन्म ले लिया है, कोई वो 10 लोगों जिन्होंने पिछले जन्म में एक षड्यंत्र रचा था और किसी व्यक्ति को इकट्ठा होकर 10 लोगों ने मार दिया था, फॉर एग्जाम्पल। और दूसरे जन्म में ये व्यक्ति कोई जापान में, कोई अलग अलग देशों में जन्मा। अब इन्होंने एक कार्य किया है जो एक व्यक्ति को इकट्ठा करके मारे थे। तो इसका इसका फल कैसे मिलेगा? कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि एक फ्लाइट निकली है और ऐसे इस तरह उस फ्लाइट में वो सभी 10 लोग बैठ गए, वही लोग जो इकट्ठा होकर किसी को मारा था। और इतना जटिल होता है ये पूरा कॉम्प्लेक्सिटी कि वही लोग बैठेंगे, वो 10 लोग, और उसका क्रैश होगा और वो 10 लोग ही मरेंगे जिन लोगों ने, और उसका जो जिसको मारा था वो शायद तक कोई नीचे ग्राउंड लेवल पे कोई, मतलब वो पायलट उसने वो कोई ईंधन भरने में गलती कर दिया, फिर वो कोई मैकेनिक होगा उस प्लेन का, उसने कोई, ये इतना जटिल है प्रभु कि इसको समझना, मगर ये भगवान की जो गुत्थी है, इसलिए तो कहते हैं भगवान की, इसको समझना मुश्किल है। मगर हमें इस चीज से ये समझना चाहिए कि जो भगवान का जो इतना जटिलता से ये किया जाता है, वो इतना परफेक्ट होता है कि व्यक्ति को अनवांटेड ले, किसी को नहीं हो जरूर है उसको मर जाएगा, ऐसा नहीं हुआ। मेरे को छोटी सी स्टोरी याद आ रही है। एक बार ऐसा हुआ था, एक राजा था, उसके पास एक पत्नी थी, उसकी बहुत सारी पत्नी थी, मगर किसी को बच्चा नहीं हो रहा था। मगर एक एक पत्नी को, उस राजा की एक पत्नी को, एक रानी को बच्चा हुआ था। तो जब बच्चा हुआ तो राजा को ऐसे तो सब रानियों को ठीक से रख रहा था, मगर जिस रानी के पास वो बच्चा पुत्र पैदा हुआ, उस रानी को विशेष ध्यान रखने लगा। तो दूसरी रानियों को बहुत ही है ना चीड़ आने लगी, और उस चीड़ आने के कारण क्या किया उस रानियों ने, उस बच्चे को मार दिया। लेकिन बच्चा रहेगा, बच्चा ही नहीं रहेगा तो फिर वो राजा विशेष प्रेम नहीं देगा उस रानी को। तो रानियों ने इकट्ठा करके उस बच्चे को जहर दे दिया था और उस बच्चे को मार दिया था। तो फिर राजा तो अभी रोने लगा और फिर सभी रानियों को इक्वल रखने लगे। मगर दूसरे जन्म में ऐसा हुआ कि वो व्यक्ति क्या हुआ कि ब्राह्मण हुआ दूसरे जन्म में। और वो, पहले आपको पता होगा, पहले जमाने में ब्राह्मण है ना किसी के घर पे खाना नहीं खाया करते थे, किसी को क्या करते थे, सिद्धू ले लेते थे और खुद ही खाना बनाते थे। एक बार वो ब्राह्मण है ना कहीं विलेज में गया और किसी को भिक्षा मांगे, बोले कि मेरे को है ना आपके घर का बाहर का चूल्हा दे दीजिए और मुझे कुछ सिद्धू दे दीजिए, कुछ खाने का पकाने का दे दीजिए, मैं खुद के लिए खाना बना दूं। तो उस व्यक्ति ने उस खाना बनाने के लिए कुछ लकड़ियां मांगी थी। उस लकड़ियों में बहुत सारी चींटियां थी। उस लकड़ी को जलाने गया तो वो चींटियां भी मर गई थी। असल में वो ब्राह्मण वो पुत्र था जो जिसको उन स्त्रियों ने, उस रानियों ने मार दिया था, और चींटियां बनी थी वो रानियां। तो वही व्यक्ति ने फिर उस चींटियों को एक साथ मार दिया सबको। तो ये जो जटिल, इतने जटिल होता है ये कर्म की आटी गुची। मगर इतना समझना है कि कोई भी व्यक्ति कोरोना से मरे कि सामान्य नॉर्मल डेथ हो, ये किसी को भी है ना अपने कर्म के, ऐसा कभी नहीं होगा कि रैंडमली कोई व्यक्ति मर गया, ऐसा नहीं। अपने कर्म के हिसाब से ही वो मरेगा। ऐसा नहीं होगा कि कोई कभी किसी को भी कुछ भी हो गया और मार दिया गया भगवान ने। भगवान का सटीक है उनका जो लॉ ऑफ कर्मा। दूसरा प्रश्न मेरा है कि अ, अब मरना तो सबको ही है, किसी को 5 साल में मरना है, 10 साल में, 20 में, 30 में। तो सब लोग बोलते हैं कि बट मरना कोई चाहता नहीं है, राइट? तो इसकी तैयारी कैसे की जाए कि भाई, जिससे कि बहुत लोगों को अभी देखा है कि पैनिक है। पैनिक क्यों है? क्योंकि उनको डर लग रहा है मरने से। तो ऐसा क्या किया जाए कि डर ना लगे जब जब मृत्यु आए? एक भजन है जहाँ पर मन की बहुत सारी चिंता होती है। कभी भी ये देखते हैं इतने सारे लोग मर रहे हैं तो कभी भय का वातावरण हो जाता है और उसको मन में भय लगने लगता है कि भाई मैं मर जाऊंगा। पैनिक जैसी सिचुएशन आती है, क्या करूं, मैं भी मर जाऊंगा तो, आज नहीं तो कल तो मरूंगा। तो फिर ठीक है, तो उसके लिए एक भजन है। तो मन को शांत करने के लिए, भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणारविंद। हे मन, तू भजन कर। भज किसको भजन करे? अभय चरणारविंद। ऐसे कृष्ण के भजन कर जिसका चरण कैसा है, अभय प्रदान करने वाला है। क्योंकि अब जब भगवान के चरण क्या करते हैं, प्रदान करते हैं, प्रेम तो प्रदान करते ही मगर अभय प्रदान करते हैं। तो जब हम भगवान का चरण का स्मरण करते, भगवान के नामों का उच्चारण करते, तो भगवान का एक नाम ही अभय है, वो अभय प्रदान करने वाले, अभय प्रदान। तो ये एक संत गा रहा है कि हे मन, हे मेरे दुष्ट मन, भजहु रे मन श्री नंद नंदन।
श्री नंद महाराज के जो नंदन है, नंद महाराज के जो पुत्र है श्री कृष्ण, उनके चरण कमल का पूजन कर, उनके चरण का स्मरण कर, उससे हमारे हृदय के जितने भी भय है सभी का विनाश हो जाएगा। तो हमें इस अवस्था में भगवान, और हमें तो, हम देखो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कभी हमको कुछ बोलते हैं कि भाई ये खाना नहीं है, वो इसका आपको पालन करना है, भाई आपको अभी डायबिटीज ज्यादा है, आपको शुगर खाना नहीं, तो हम डॉक्टर की बात सुनते हैं। तो भगवान गीता में कहते हैं कि हमें भय, अभय देने वाला हूँ, मैं भय का विनाश करने वाला हूँ, आप अगर मेरा भजन करोगे तो मैं सब आपकी भय के, भगवान गीता में सब पापों को मुक्त कर दूंगा। तो इस हिसाब से तो भगवान पे हमें ट्रस्ट होना जरूरी है। जब जैसे डॉक्टर के ऊपर ट्रस्ट करते हैं, डॉक्टर बोलते हैं ये करना है, डायबिटीज है, आपको शुगर नहीं खाना है, हम उसका फॉलो करते हैं। मगर जब भगवान कहते हैं कि मेरा नाम का पालन करो, मेरे नाम का भजन करो, मैं सभी प्रकार के पापों से मुक्त कर दूंगा, सभी प्रकार के भयों से मुक्त कर दूंगा, तब हम इतना ध्यान नहीं देते, हम लाइट लेते। तो मतलब क्या भगवान से बड़े डॉक्टर? नहीं, ऐसा नहीं कहता कि डॉक्टर के भी, मगर जिस तरह से डॉक्टर का सुनते हैं, तो भगवान भी गीता में चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं, भगवत गीता में, कि मेरे शरण में आ जाओ, मैं सभी प्रकार के भयों से, सभी प्रकार के पापों से मुक्त करूं। तो हमें थोड़ी श्रद्धा तो ये होनी चाहिए, क्योंकि श्रद्धा बिना तो काम बनेगा नहीं। श्रद्धा थोड़ी तो होनी चाहिए। भगवान स्वयं कहते हैं कि आपके भयों का नाश करूंगा। मगर श्रद्धा हम सब पे रखते हैं। जैसे कभी कोई टैक्सी लेते हैं या फिर ऑटो वाला होता है, उसको बोलते हैं भाई यहाँ से मेरे को ले चलिए, यहाँ समझो कोई दिल्ली में है, कोई द्वारका में है, कोई बोले कि मेरे को भाई रोहिणी ले चलो, तो ऑटो वालों को हम जब पैसा देते हैं, पैसा भी नहीं देते, हमको बोले कि रोहिणी ले चलो, तो ऑटो वालों को कितना भरोसा है कि ये बंदा, मैं इसको रोहिणी में उतारूंगा तो मेरे को पैसा देगा, और हमको भी कितना भरोसा है कि ये मेरे को रोहिणी ले जाएगा। तो छोटे से ट्रांजैक्शन डेली हमारे ये रोजिंदा जिंदगी के लिए भी हम छोटा सा ट्रस्ट करते हैं कोई भी व्यक्ति को जिसको हम जानते नहीं है। तो भगवान तो ये स्वयं कह रहे हैं कि मेरा नाम लेने से व्यक्ति सभी प्रकार के पापों से, भय से मुक्त हो जाता है। तो हम सामान्य जीवन में भी हम किसी पे ट्रस्ट करते हैं, रिक्शा वाले को। हम फ्लाइट में जब बैठते हैं तो हम कभी चेक करते हैं, भाई पायलट का मेरे को लाइसेंस दिखाओ, भाई इसके पास ऑथेंटिक है, सही में पायलट है कि नहीं, ऐसा नहीं कभी बोलते। एक टिकट लिए और बैठ जाते। हम ये ट्रस्ट करते हैं कि वो पायलट एक ऑथोराइज लाइसेंस होल्डर है जिसको प्लेन चलाना आता है। हम कभी ये इतना ट्रस्ट हमें ऐसे कंपनियों पे है, तो क्यों भगवान पे नहीं? जब भगवान स्वयं कह रहे हैं कि मेरा नाम लेने से आप सभी प्रकार के भय और पापों से मुक्त हो जाओगे, तो हमें थोड़ी श्रद्धा रखनी जरूरी है। किसी और का है कोई क्वेश्चन? दूसरा एक चीज और मेरे को आ रही है कि लोग इंडिया में जैसे बोलते हैं कि भाई भगवान के नाम लेना है, अभी तो पूरा जिंदगी पड़ी है, यंग एज में क्यों करना है? बोलते हैं कि अभी तो पढ़ाई कर लो, जॉब कर लो, 50 साल 60 साल के बाद देखेंगे, 60 साल के बाद करना चाहिए, रिटायर हो जाएंगे। उस पे आपका क्या कहना है कि ये सही है या ये क्या है? देखो, मृत्यु तो कभी भी आ सकती है। जैसे बूढ़ा, कोई बोलते हैं कि मृत्यु, बूढ़ा होके भजन करना चाहिए, कोई व्यक्ति बोले। बूढ़ा का मतलब क्या है? कोई किसी को पूछे बूढ़ा का मतलब कोई बोलेगा कि जो व्यक्ति की मृत्यु के नजदीक हो। अच्छा, मृत्यु के नजदीक उसको बूढ़ा बोलते हैं, तो मृत्यु के नजदीक तो बच्चा भी है, तो उसको भी बूढ़ा बोलना जरूरी है। क्योंकि मृत्यु तो कभी भी आ सकती है ना। कोई ऐसा जरूरी है कि भाई मेरे को 25 साल के बाद के 30 साल के बाद के 50 साल के बाद ही मरूंगा? हम तो देखते हैं इस कोरोना वायरस में बहुत सारे लोग जो जवान थे वो भी मर गए। तो कहने का मतलब हमारा नहीं, मृत्यु का कोई ठिकाना नहीं है, कभी भी हम मर सकते हैं। इसलिए श्रीमद् भागवतम के सेवेंथ कैंटो में, सेवेंथ स्कंद में प्रहलाद महाराज की कथा आती है, और वो स्वयं कहते हैं कौमार आचरे प्राज्ञ, व्यक्ति को कभी भक्ति करना चालू कर देना चाहिए 5 साल की उम्र में। जैसे ही वो 5 साल का हो उसको भक्ति करना चालू कर देना चाहिए, क्योंकि तभी जाके हम, जो देखो एग्जाम होती है हमें लास्ट में, तो कोई व्यक्ति सोचेगा भाई अभी तो 1 साल की देर ही है, अभी ये काम कर, तो लास्ट में पढ़ूंगा। लास्ट में नहीं पढ़ना होता है, पूरी जिंदगी में पूरी साल पढ़ना होता है, तब जाके लास्ट में जाके अच्छे नंबर आते हैं। कोई व्यक्ति अगर लास्ट दिन में पढ़ना चालू करेगा, इतनी बड़ी बड़ी बुकें लेगा, अरे यार कहाँ चालू करूं, क्या पढ़ूं क्या नहीं पढ़ूं, वो फेल होगा। तो मृत्यु हमारा अंतिम परीक्षा है। तो मृत्यु में उत्तीर्ण आना हो, मृत्यु को पार करना हो, तो पूरी जिस तरह से पूरे साल मेहनत करते हो, लास्ट में एग्जाम देते हैं, उस हिसाब से पूरी जिंदगी हमें मेहनत करनी है और लास्ट में एग्जाम देनी है। कभी ऐसा नहीं होगा कि लास्ट में भगवान का नाम, मैं अपने खुद का एग्जाम्पल देता हूँ। मैं मेरे पिताजी मेरे को एक बार कहीं किसी उनके रिलेटिव के वहां ले गए थे, बोले कि उनकी तबीयत खराब है, चलो साथ में चलते हैं। तो मैं गया था, तब मैं
उतना भी बड़ा नहीं था, मैं 10-12 साल का होगा। तो मेरे को समझ में आ रहा था, तो वो बूढ़ा जो जो व्यक्ति था, मेरे हमारे जो रिलेटिव थे, वो बहुत बूढ़े थे और खाट पे लेटे हुए थे, और सब घर के लोग है ना उनको बुला रहे थे कि राम बोलो भाई, राम बोलो, आप राम बोलो। वो व्यक्ति राम नहीं बोल पा रहा था, राम नहीं बोल पा रहा था। घर के लोग उनको प्रयत्न करवा, क्यों? पूरी जिंदगी राम का नाम, मैं खुद सोच रहा था कि इतना सब रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ये व्यक्ति क्यों राम का नाम नहीं ले पा रहा है। फिर अभी जाके जब इतना पढ़ा, समझा, भक्तों से समझा, तब समझ में, अच्छा ये कोई बुढ़ापे की चीज नहीं है भक्ति। भक्ति तो हमें शुरुआत से करनी पड़ती है, तब जाके हमें अंत में भगवान का नाम याद आता है। ऐसा कभी नहीं होगा कि हमें लास्ट में भगवान का नाम लेने जाओ। छोटी सी कथा कहता हूँ तो समझ में आ जाएगा आपको। एक बार ऐसा हुआ कि इसने यजामिल की कथा सुनी थी, एक धनी व्यक्ति ने। देखिए भाई, यजामिल की स्टोरी बेस्ट है। पूरी जिंदगी पाप करो और लास्ट में नारायण बोल के भगवान के धाम में, इससे बेस्ट मेरे को तो लगता नहीं है। तो उसने क्या किया था, उसके चार बेटे थे। तो सबका नाम, किसी का गोविंद, किसी का केशव, किसी का मुरारी, किसी का नाम कृष्णदास, ऐसा रख दिया था। तो भाई मेरे 4 बेटों का नाम 4 मैंने भगवान के नाम पे रख दिया है। अब पूरी जिंदगी में ना जो कर रहा हूँ करूंगा, लास्ट में तो मैं अपने बेटों का नाम बुला के भगवान के पास बुला जाऊंगा। तो लास्ट मोमेंट था, वो व्यक्ति मरने के कगार पे था और फिर वो मर रहा था। फिर उसको याद आया कि हाँ भाई, अभी मुझे तो भगवान का नाम लेना है, क्योंकि अभी यजामिल ने लास्ट में नाम लिया था, अभी मेरे को वही विष्णुदूत लेने आएंगे। तो उसने फिर बुलाना चालू किया कि भाई कृष्णा कहाँ है, कृष्णदास। तो बोले हाँ पिताजी मैं यहाँ पे हूँ। अच्छा भाई मुरारी कहाँ है, हाँ पिताजी मैं यहाँ हूँ। बोले केशव कहाँ है, हाँ पिताजी मैं यहाँ हूँ। गोविंद कहाँ है, हाँ पिताजी मैं यहाँ हूँ। बोले चारों चार यहाँ पे हो, तो दुकान पे कौन है? और जब बोला दुकान पे कौन है, तभी उनकी मृत्यु हो गई। तो फिर वो तब वो सोच रहा था मैं भगवान का नाम लास्ट में। उसने क्या बोला, सभी लोग यही है, और तो ये दुकान पे कौन रहा है, सब यही मरे हुए हो। तो कहने का मतलब, तो उसका लास्ट भाव क्या हुआ, दुकान। तो लास्ट में फिर दूसरे जन्म में फिर वो चूहा बन के उस दुकान में अपनी रक्षा करेगा, अपनी दुकान की। तो कहने का अर्थ है कि हम सोचेंगे कि बहुत बुद्धिशाली है, हम बुद्धिशाली नहीं है। हम क्या करते हैं, भगवान के पास जाते हैं और बोलते हैं भगवान मेरा इतना तकलीफ है, तो आप इतना ठीक कर लीजिए। हम चाहते हैं कि हम भगवान की शक्तियों पे विश्वास करते हैं, मगर बुद्धि अपनी यूज करते हैं। भाई अगर आप मानते हो कि भगवान शक्तिमान है, कुछ भी कर सकते हैं, तो बुद्धिमान नहीं हो सकते क्या? तो हमें हमारी बुद्धि नहीं लगानी, हमें भगवान की बुद्धि पे भरोसा रखना है। जब भगवान की शक्ति पे भरोसा रख रहे हो, तो भगवान की बुद्धि भी आपसे ज्यादा समझते हो। तो कहने का अर्थ यह है कि यही कि हमें भक्ति है ना, शुरुआत में बचपन से ही करनी चाहिए, क्योंकि हमें पता नहीं हमारी मृत्यु कभी भी हो सकती है, और हमें इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए, और भजन अभी करना चाहिए। और इससे बड़ा उदाहरण क्या है, कोरोना वायरस। कभी भी कोई भी मर रहा है, यहाँ वहां सब मर रहे हैं। तो हमें भगवान का नाम लिया होता है, तो कुछ न कुछ सुकृति होती है, दूसरे जन्म में भगवान की भक्ति चालू होती है वैसे। बिल्कुल, थैंक यू। तो अभी कोरोना वायरस में जैसे आई थिंक मेरे हिसाब से 3-4 चीजें जो प्रैक्टिकल हम जो कर सकते हैं आसानी से, राइट, सबके भले के लिए। एक तो तुरंत तुलसी की कंठी माला धारण कर लेनी चाहिए, क्योंकि यमदूतों को यमराज ने बोला है कि जिसने भी कुंठी माला पहन रखी है वो टच नहीं करना है। तो इवन अगर आपकी मृत्यु हो रही है, कोरोना से हो रही है या एक्सीडेंट से हो रही है, एटलीस्ट यमदूत तो नहीं आएंगे। दूसरा कि माला कर देनी चाहिए शुरू, 1-2 राउंड 3 राउंड, क्योंकि भगवान ने बोला है कि उसमें यमराज ने यमदूतों को बोला है कि भाई जो भगवान का नाम ले रहा है उसको भी टच नहीं करना है। हाँ, ये हो सकता है कि हम अभी शुरू करें, हम लेट हो गए हैं या जो भी है, बट भगवान बोल रहे हैं कि जिसने भक्ति शुरू कर दी है एटलीस्ट उसको ह्यूमन नेक्स्ट बर्थ ह्यूमन गारंटीड है, और वो नरक में नहीं जाएगा। ये सही है प्रभु जी? यस यस। भगवान भगवान कोई ओल्ड एज में भी शुरू करता है, 60-70 की उम्र में भी, राइट, और सपोज 1 ही साल कर पाता है और उसको जाना पड़ता है, तो उसका क्या कैसे होता है फिर? उसको अगले जन्म में शुरू करता है या फिर वो उसका कैसे होता है उसका फिर? देखो, भगवान का एक नियम है कि भगवान किसी का ऋण बाकी नहीं रखते। भगवान को अगर किसी ने कुछ भी दिया है, भगवान का नाम भी दिया है, भगवान उनके दिमाग में होता है कि इस भक्त ने मेरा नाम लिया है, इस भक्त ने मुझे कुछ दिया है। या फिर हम कभी कोई व्यक्ति दान देने की बहुत उसको अच्छा लगता है कि दान देना है मेरे को। भगवान किसी का ऋण बाकी रखते
नहीं है, नंबर 1। और दूसरी है भगवान, भक्ति का यही तो बड़ी चीज है। नॉर्मली क्या होता है, हम समझो आज मैं बहुत पढ़ाई किया, साइंस, डॉक्टर बना, बड़ा बड़ा न्यूरो सर्जन बन गया, तो जब मैं मरूंगा और दूसरा जन्म समझो मैं लकीली मैं मनुष्य बन जाऊंगा, तो उसका मतलब ये नहीं कि मैं बच्चा बनूंगा तो मेरी वो डॉक्टर के सर्टिफिकेट के साथ पैदा होऊंगा, नहीं, मुझे फिर से एबीसीडी चालू करनी पड़ेगी। मगर यहाँ पे जब भक्ति का ऐसा है कि व्यक्ति जो थोड़ा सा भी पुण्य किया होता है, थोड़ा सा भी पुण्य किया होता है, उसका समझो 2% उसने पुण्य किया है, भगवान की भक्ति की है, 2% भगवान की भक्ति की है, तो वो भक्ति दूसरे जन्म में वो 3% से चालू करे, उसको फिर से एबीसीडी से चालू करना जरूरी नहीं है। तो समझो कोई व्यक्ति 50% तक उसने भक्ति की है, तो नेक्स्ट जन्म में उसकी एक 51% से चालू हो गई, उसको फिर कहीं 1% चालू नहीं। इस हिसाब से देखते, कभी कभी बच्चों को देखते, वो पूर्व जन्म में बच्चे भगवान के भक्त होते हैं मगर उनकी भक्ति अधूरी रह जाती, इसलिए फिर उनका दूसरा जन्म ऐसे भक्त के घर में ही जन्म होता है। तब जाके देखो बच्चे छोटे भी होते हैं तो भी वो कीर्तन में भाग लेते हैं, उत्साह से कीर्तन करते हैं, नाचते कूदते। क्यों? ये स्वाभाविक है, क्योंकि पूर्व जन्म में वो भगवान का भक्ति था, मगर कहीं ना कोई भी कारण से उसकी भक्ति पूर्ण हुई नहीं थी, इसलिए भगवान उसको मौका दे। भगवान स्वयं गीता में कहते हैं, अर्जुन ने पूछा है कि भगवान आप कह रहे हो कि आपके भक्ति करने से ये सब छठे अध्याय में आता है, श्रीमद भगवद गीता के छठे अध्याय में, जहाँ अर्जुन एक उदाहरण देते हैं कि आपके भक्त का ये हाल तो नहीं होगा, समझो पूरी लास्ट टाइम पे वो अगर पूरी भक्ति कर नहीं पाया तो फिर उसका हाल ये तो नहीं होगा कि बादल होते हैं तो पवन के कारण वो बादल भी छिन्न भिन्न हो जाते, तो यहाँ के भी नहीं वहां के भी नहीं, अच्छी तरह से भौतिक जीवन भी नहीं गुजार पाए और भक्ति भी ना मिली। भगवान नहीं, मेरे भक्तों का कभी भी विनाश होता नहीं, ना मैं भक्त प्रणाशित। हे अर्जुन, जाके डिक्लेयर कर दो, जाके घोषणा कर दो कि मेरा भक्त का कभी विनाश नहीं होता। समझो मानो कि उसकी भक्ति इस जन्म में खत्म नहीं हुई, तो नेक्स्ट जन्म में, दूसरे जन्म में पर्सनली ये गारंटी देता हूँ कि वो दूसरे जन्म में कोई धनी व्यक्ति के वहां पे या फिर कोई शुद्ध ब्राह्मण, शुद्ध भक्त के वहां पे जन्म लेगा और वहां से वो भक्ति चालू करेगा। और तो ये क्यों, भगवान स्वयं गीता में ये गारंटी देते हैं। तो कोई भी व्यक्ति है समझो अगर बुढ़ापे में भक्ति चालू करता है, थोड़ी ही भक्ति कर पाता है, तो डोंट वरी, भगवान उसका पूरा रक्षण करते हैं और नेक्स्ट जन्म में उसका भगवान उसकी ध्यान रखेंगे कि उसकी भक्ति चालू हो जाए। तो उसके लिए चालू होने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको भगवान के भक्तों के घर पे ही जन्म मिलता है और फिर वहां से चालू करता है। थैंक यू प्रभु। इसका मतलब भगवान आश्वस्त कर देते हैं पूरा गारंटी के साथ, 100% गारंटी, जैसे अमेजोन की गारंटी है ना, रिटर्न 15 दिन में रिटर्न, अगर प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड नहीं हो तो 100% गारंटी। हमारे गुरु महाराज एक बार कह रहे थे कि हम अमेजोन की गारंटी पे विश्वास रखते हैं, बट भगवान की गारंटी के लिए हम डाउट करते हैं कि चलेगा नहीं चलेगा, पता नहीं होगा नहीं होगा। यही तो हमारे दुर्भाग्य है, भगवान पे भरोसा नहीं है। भगवान पे भरोसा रखना जरूरी है, इसलिए बोला ना, भगवान की शक्तियों पे भरोसा, भगवान की बुद्धि पे भरोसा रखना जरूरी है। भगवान ने हर किसी के लिए, वो जैसे अपने शुरुआत में स्टोरी सुनी, वो भगवान का सबके लिए सब कुछ प्लान दिया और रखा हुआ है, मगर फिर हम हमारी बुद्धि लगाते हैं तो फिर नहीं काम करेगा। हमें फिर श्रद्धा काम रखनी है और भगवान की बुद्धि पे भरोसा रखना है, भगवान के शब्दों पे भरोसा रखना है। भगवान कह रहा है कि मैं रक्षा करूंगा, मतलब भगवान करेंगे 100%। राइट। थैंक यू प्रभु जी। और दूसरा एक ये है, एक और क्वेश्चन आ रहा है मेरे दिमाग में कि सपोज कोई आदमी अभी शरीर छोड़ने वाला है, लग रहा है चलो कोरोना हो गया है, जो भी हो गया, तो उसके परिवारजन उसकी कैसे सहायता कर सकते हैं कि भाई उसको खुद भगवान का स्मरण ना हो बट किसी तरह उसकी कोई सहायता की जा सकती है? नहीं ना, की जा सकती है। जैसे कि पहला कार्य अगर कोई भी घर में क्या करना चाहिए, भगवान, आप घर खाना तो खाना ही है, खाना बनता हो तो पहले वो भोग लगाना चालू कर दे, भगवान को भोग लगे, उस व्यक्ति को जो खाना देना है वो भगवान का प्रसाद ही खाए। क्योंकि भगवान का प्रसाद नहीं खाएगा तो वो पाप खाएगा, क्योंकि सामान्य खाना खाना वो पाप के बराबर है। जब वो भोग लग जाता है भगवान को, तब वो उसको देना। तो पहला कार्य किसी को क्या करना है, जो व्यक्ति अगर बीमार है उसको जो भी खाना दिया जाए वो भगवान को अर्पित करके दिया जाए। और दूसरी चीज, अगर वो बोल सकता है, अगर थोड़ा अच्छा है, तो उसको भगवान की माला करवानी चाहिए। अगर नहीं कर सकता है और बेड रिडन है, मतलब बेड पे पूरा लेटे हुए और कुछ कर नहीं सकते, तो एक हरे कृष्ण महामंत्र का मशीन मिलता है, या फिर आप खुद भी बोल कर सकते हो, आप खुद माला करिए और उनको सुनाइए, वो सुन तो सकते हैं। और भगवान की बड़ी बहुत सारी विचित्र बात में बताओ और बहुत इंटरेस्टिंग बात है, हमारी 5 इंद्रिया है, कर्म इंद्रिया और ज्ञान इंद्रिया, 5 ज्ञान इंद्रिया 5 कर्म इंद्रिया। तो जब भी है ना कोई व्यक्ति जब बूढ़ा होता है या फिर मरना होता है ना,
तो उसकी आंखें जल्दी चली जाती है, मुंह का टेस्ट चला जाता है, नाक में श्वास ठीक से नहीं लिया है, मगर वो लास्ट ये ईयर का लास्ट में जाता है तो वो थोड़ा बहुत सुन पाए, तो सुनता रहेगा। तो आप अगर कोई व्यक्ति, अगर इस घर में कोई अगर ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ही ग्रस्त है ऐसे बीमारी से, जो बोल नहीं पा रहा है, तो उनको प्रसाद दीजिए भगवान को अर्पण करके, नंबर 1। नंबर 2, आप खुद माला करिए और उनको सुनाइए, और एक मशीन आता है हरे कृष्ण महामंत्र, उसे लगा देना है तो जपता रहेगा हरे कृष्ण महामंत्र, तो उस हिसाब से वो कॉन्स्टेंटली सुनता रहेगा। और वातावरण ऐसा करना पड़े। और दूसरी चीज, उसको गंगा जल देना चाहिए, तुलसी पत्र उसको देना चाहिए। कंठी माला, पहले तो प्रभु जी ने अभी फिर से रिपीट करवाया और कहा कंठी माला, ये तुलसी की माला पहननी बहुत जरूरी है, उनको देना, क्योंकि ये हमारा कवच है, इसको है ना छुएंगे नहीं। ये भगवान के यमराज का ऑर्डर है यमदूतों को कि जिस व्यक्ति ने ये कंठी धारण की, उनको हमारे परव्यू में नहीं आते, हमारे 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 जुरिडिक्शन में नहीं आते लोग, उनको दूर रहना है, उनसे दूर रहना है, आपको उनके नजदीक नहीं जाना है। तो यमदूत कभी हमें यमपुरी में नहीं ले जाएंगे जिसने कंठी माला धारण की है। तो प्लीज कंठी माला धारण करिए, तुलसी की, बहुत जरूरी है। ठीक है, क्यों प्रभु। नहीं, ये सारी प्रैक्टिकल चीजें जो है आमतौर पे लोगों को पता नहीं होती। जो लोग क्या करते हैं, जब बेड रिडन हो जाता है कोई, क्या हो जाता है, तो पैनिक हो जाते हैं, या उसको हॉस्पिटल भाग रहे होते हैं या कुछ कर रहे होते हैं, और आदमी अफरा तफरी में ही कई बार प्राण छोड़ देता है कि घर से हॉस्पिटल जा रहा है, छूट गए प्राण, या फिर हॉस्पिटल में भी नर्सों के उसमें है तो एक छूट गए। तो मेरे हिसाब से उसको थोड़ा पीसफुल एनवायरनमेंट होना चाहिए और स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट, जब वो अपने प्राण छोड़े। या शांति के लिए। मेरा एक क्वेश्चन है हाँ गुरुजी, जैसे आदमी बीमार हो जाता है, सपोज करो कोरोना से ही हो, और वो हॉस्पिटल में जाएगा, तो उसको तो ये सब चीज उतार देते हैं डॉक्टर लोग, फिर वो कैसे पहनेगा? तिलक तो कर सकते हैं ना। हाँ, तिलक भी हट जाता है, क्योंकि जब तक आदमी वहां रहेगा वो तो सब चीज साफ कर देते हैं, कान नाक सब निकाल देते हैं, तो कंठी माला भी निकाल देंगे। देखो 4 चीजें कही गई है। कंठी माला, तो हाँ चलो कंठी माला निकाल देंगे। तिलक, चलो तिलक भी निकाल देंगे। जो पुरुष है तो शिखा तो रख सकते हो, तो बाल तो हाँ, काटेंगे वो नहीं। रखी जा सकती है, लेकिन लेडीज का है तो लेडीज की हाँ रखनी। चलो, अगर अच्छा लेडीज का है तो 4 चीजें बताई गई है। हाँ, और मुंह में गंगा भगवान जल भी का नाम। निकालते वो, गंगा जल भी हाँ? नहीं डालते वो लोग तो। अच्छा, तो मुंह से भगवान का नाम लेना है। हाँ, वो ना, उस टाइम तो होश हो या ना हो, नाम कैसे ले? तो इसलिए तो हम, इसलिए तो तैयारी अभी करनी है। हाँ है। उसकी तैयारी पहले से ही करनी है, हाँ ये वो पूरा। काम आएगी। हाँ तैयारी काम। देखो, एक बार किसी भक्त ने पूछा भगवान को कि भगवान, मान लो आप बोलते हो कि अंत में जो भगवान का नाम लेता है तो आप उसकी रक्षा करते हो अपने नाम, मगर भगवान के भक्त ने भगवान को पूछा, मान लो मेरा स्मरण नहीं हुआ, आपको मैं याद नहीं कर पाया, तो भगवान बोलते हैं, मैं तेरे हृदय में परमात्मा के स्वरूप, मैं तेरे को याद दिलवा दूंगा कि तेरे को मुझे याद करना है। ये भगवान की अश्योरिटी है। हाँ भगवान बोलते हैं, मैं तेरे को याद दिलवा दूंगा कि तेरे को मेरे को याद करना है। हाँ, तो सोचो, मगर ये पूरी जिंदगी प्रैक्टिस की होती है, तब जाके वो ये अपने लास्ट याद एग्जाम में दिलाते हैं, याद दिलाते हैं। याद दिलाते हैं। इसलिए फिर हमें जैसे हम लोगों ने बचपन से देखा, देवी की पूजा कर ली या हनुमान जी की पूजा कर ली, वो ही करते आए, अब बुढ़ापे में ही करिए ये पूजा, तो उसका भी तो असर होगा ना। अब हम लोगों ने जैसे माता रानी की करी पूजा, तो सब बच्चों के काम काम निमट गए, सब कुछ हो गया, तो ये इसका मतलब हमारे को उसका फल दे रहा भगवान। हम भगवान को तो याद करके देखो, चल रहे हैं। जैसे माता रानी है, गणेश जी है, ये समझ लेना, ये सब भगवान के भक्त है। ये भक्त सब है है ना, ये सब उन्हीं की। भगवान के भक्त है, और ये चाहते हैं कि जीव है ना भगवान के पास चला जाए। तो जब हम है ना माता जी के पास जाते हैं या फिर कोई गणेश जी के पास जाते हैं, और हमें हाँ हृदय में ये होता है कि मुझे ना भगवान के पास जाना है, तो वो हमें सही में भगवान का मार्गदर्शन करते हैं। हमारा हृदय अगर शुद्ध होता है तो ये हम्म, हमें दूसरी ये भौतिक चीजों तो देते ही है, ये जो हमें घर हाँ परिवार को संभालने के लिए, मगर वो मार्गदर्शन भी हमारे हृदय में मार्गदर्शन हाँ भी करते हैं कि ये आप परम पिता के पास जाइए, मेरे भी स्वामी हैं जो कृष्ण, उनके पास जाइए। वो खुद भी अपने भक्तों को, जो माता रानी अपने भक्तों को ये करते हैं, मगर किनके लोग जो सरल है, जो बहुत कुटिल है, बहुत ये है, तो माता जी रानी क्या करते हैं, उसको दे के भाई हाथ छंछेड़ दे, भाई जाओ तू अपना अपना, तूने मेरे को मेरा पूजन वूजन किया, और तू तो ऐसे भी दुष्ट है और कुछ भी उल्टी सीधी चीजें मानता रहता है, ले तेरा मेरा पीछा छोड़ और तू पकड़े भाग गया ऐसे। मगर जो हम्म, व्यक्ति सरल होता है हृदय से,
बहुत ही। तो देवी देवता भी देखते हैं कि नहीं ये व्यक्ति बहुत सरल है, इसको पता नहीं है, तो वो राधा, ये जो माता रानी, ये दुर्गा, ये शिव जी, ये गणेश जी, भगवान के भक्त होते हैं, वो है ना, वो क्या करते हैं, वो ऐसे इस तरह जीवन के ऐसे मोड़ ला देते हैं जीवन उस व्यक्ति के, कि वो भगवान के शरणों में चले जाता है। अच्छा, इसका जो एक हॉस्पिटल का जो आंसर है, एक मैं एग्जांपल बताता हूँ जो कि कनाडा में हुआ। एक माता जी है यहाँ पे, उनको कैंसर है, कैंसर। तो वो गई कैंसर के लिए, ऑब्वियसली सर्जरी वगैरह, केमोथेरेपी जो भी करना है, तो डॉक्टरों ने बोला कि उनको आप ये माला हटानी पड़ेगी। तो माला हटाने का रीजन क्या होता है कि इसमें अगर मेटल होता है तो वो प्रॉब्लम करता है, बट वो माता जी ने बोला कि मैं ये माला नहीं उतारूंगी, जो मर्जी हो जाए, चाहे मैं मर जाऊं, ये नहीं उतारूंगी। तो जब डॉक्टरों ने देखा कि भाई ये माता जी बिल्कुल दृढ़ निश्चय है, ये तो नहीं उतार रही, तो उन्होंने बोला ठीक है, ये अंग्रेज के डॉक्टर, यहाँ कनाडा के डॉक्टरों ने भी उनको अलाउ कर दिया और उनको पहनने दिया। तो अगर इंडिया में कोई है, इंडिया में, तो वो डॉक्टर समझेगा राइट कि माला है। और यहाँ कनाडा में काफी जो भक्त लोग हैं जो हॉस्पिटल में है, वो उनके पास हरे कृष्णा महामंत्र की वो जो जप है वो रखने को भी अलाउ कर देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि माला अगर डॉक्टर को बोलो और इंसिस्ट करो तो वो अलाउ करेंगे पहनने। और तिलक तो नहीं हटाएंगे, तिलक तो लगा के रख ही रखते हैं, तिलक से उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ये हमारे ऊपर भी है कि हम कितना वो करते हैं, दृढ़ निश्चय हमारा उस चीजों निश्चय कितना है दृढ़। जैसे उस माता जी का, उनका दृढ़ निश्चय था कि जो मर्जी हो जाए कि मैं ये माला नहीं उतारने वाली। तो डॉक्टरों ने फिर गिव इन कर दिया। मैं आपको छोटी सी कथा एक वो बताता हूँ। एक बड़ी कंपनी थी, उस कंपनी में एक भक्त काम करते थे, और वो कंपनी रन की जाती थी एक मुसलमान से। उसका एमडी था, जो ओनर था ना, वो मुसलमान था। तो वो भक्त वो चाहता था कि मेरे जो भी व्यक्ति है ना, हिंदू आते हैं मेरे जो कंपनी में काम कर रहे हैं, जो लेबर्स आते हैं, वो एक तिलक और एक कंठी माला लेके ना आए। तो हुआ क्या कि उस व्यक्ति ने जाहिर कर दिया कि मेरी कंपनी में किसी को काम करना है तो ये सब करके आना नहीं है। तो वो एक शुद्ध भक्त था, एक अच्छा भक्त था। उसने बोला कि भाई आपको भाई निकालना हो तो निकाल सकते हो, ये कर। तो दूसरे जिस दिन वो फरमान आया उस बॉस से, उस ऑनर से, तो जो लोग ऐसे भगवान पे थोड़ा कच्ची श्रद्धा रखते थे, तो उन्होंने फिर वो तो तिलक विलक जो अगर करके आते थे कभी भी, ऐसे ऐसा तिलक या फिर एक कंठी को सबने निकाल दिया। मगर वो एक व्यक्ति था जिसने ये तिलक लेकर के आता था, और ये कंठी माला, और ये सही घटना है, उस व्यक्ति ने उसको निकाला नहीं, उसको डबल प्रमोशन कर दिया। बोले तो जो विश्वास करता है, जो उस पर तेरे को कितनी श्रद्धा है कि मैं तेरे को बोलूं कि कोई ऐसा कोई करके आएगा उसको निकाल दूंगा, मगर तुमने निकालना तो निकाल दो, मगर मैं ये नहीं करूंगा। और ये सही घटना है। उस व्यक्ति को, उस ऑनर ने, उस मुसलमान ऑनर ने उस हुंडी को रखा तो सही, मगर उसका पगार भी बढ़ा दिया। क्यों? बस उसकी श्रद्धा होने के कारण। तो मतलब भगवान रक्षा करते हैं जो उनकी श्रद्धा रखते हैं उनपे। ये सही बात है कि हमें श्रद्धा रखनी जरूरी है भगवान पे, भगवान पे श्रद्धा रखनी। और जैसे मुसलमान लोग अपना वो नहीं छोड़ते, राइट, हिजाब या जो भी है, जो मर्जी हो जाए वो उसको नहीं छोड़ते। सिख लोग है अपना, कहीं भी चले जाएं वो नहीं छोड़ेंगे जो उनका है। तो हमको भी उतनी दृढ़ता से करना चाहिए। जो कनाडा में जो एमपी है एक दूसरी पार्टी का, वो तो भी रखता है अपनी पगड़ी, कहने का मतलब दाढ़ी भी रखता है। ऐसा नहीं बोलते कि भाई यार मेरे को गोरों के देशों में मेरे को उनके जैसा बनना पड़ेगा, नहीं। जो अपन बिलीव करते हैं वो बिलीव करते हैं। तो हमें भी भगवान पे श्रद्धा रखनी चाहिए, और भगवान जो कह रहे हैं उस पर दृढ़ रखना चाहिए विश्वास। ठीक है, काफी अच्छा रहा प्रभु जी। और कुछ लोग ज्वाइन नहीं कर पाए थे, तो मैंने ये रिकॉर्ड कर लिया है। तो जैसे मेरी एक अनु सिस्टर है, वो यूएस में है, उनकी थोड़ी तबीयत थी, उनको मैं ये शेयर कर दूंगा रिकॉर्डिंग, बिकॉज उन्होंने मेरे को स्पेशली बोला कि रिकॉर्ड करके रख लेना। ठीक है, ठीक है, ठीक है। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, थैंक यू, हरे कृष्णा, थैंक यू। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। अभी आप कैमरा ऑन कर सकते हैं, अगर अभी नॉर्मली अगर बात करना है थोड़ा तो कर सकते हैं, अभी सब लोग हैं तो कोई बात नहीं। कर लेंगे। और भाई शशि तुम ठीक हो? शशि, अरुणा, मधु सब ठीक हो? दीपक, भाभी जी से तो बात होती रहती है, पुष्पा भाई जी से, अरुणा से भी होती रहती है, दीप्ति से भी हो गई। दूसरे अंकित कौन है यहाँ पे? एक और अंकित है, होगा ये अरुणा का लड़का। अच्छा। मैं हूँ आशु।
आशु, अच्छा। अंकित इसका भी तो नाम है। मैंने कहा कि ये एक और अंकित का नाम है। अंकित वही है, आशु। अच्छा अच्छा, नमस्ते भैया, दीपक भैया नमस्ते, कैसे हैं? नमस्ते। नमस्ते नमस्कार नमस्ते। भाई दीपक। और अलका की तबीयत ठीक है अब? हाँ हाँ, ठीक है। पता लगा जब तुमसे बात हुई। और बच्चे बच्चे सब ठीक, सब घर में ही है? हाँ जी, हाँ सब बढ़िया है। वहाँ सब ठीक है? हाँ, यहाँ पे सब ठीक है। उनकी क्या भी, यहाँ भी सब जगह है। थोड़ा बहुत कहीं कहीं इंडिया में ही हो रहा है अभी परिवारों में। बस दिल्ली में ही ज्यादा है। हाँ, यहाँ पे भी है, लेकिन हम लोग तो कहीं निकलते नहीं है ना घर से बाहर। बच्चे जाते हैं बाहर कुछ भी सामान लेना, हम लोग तो जाते ही नहीं। हाँ उसी वजह से बचे हुए हैं हम भी, बच्चों की वजह से। नहीं तो इंडिया हाँ में होते तो हो सकता है चपेट में हम भी आ जाते। क्योंकि भाई खूब करना तो पड़ता ही पड़ता काम तो। एक को तो दोनों का देता। चलो भाई, सब ठीक रहे, यही है। हाँ जी, भगवान से प्रार्थना की भी ये समय आया है बुरा, ये भी टल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। सर के 15 मिनट में कराएंगे डॉक्टर। अब देखो भाई, अब लोगों की भविष्यवाणी है कि 29 जून तक सब धीरे धीरे कम होगा। क्योंकि वैसे 18 साल तक के बच्चों को भी लगने लगेगा तो काफी लोगों को लग जाएगा वैक्सीन। हाँ तो उससे फर्क पड़ेगा। पता नहीं आज क्या ऑक्सीजन का क्या चक्कर चला है। ऑक्सीजन की तो बहुत कमी चल रही है यहाँ। पता नहीं, पहले तो हमने कभी नहीं सुनी ऐसी। नहीं है इसी हाँ बात। और या तो ये देखो, एक हफ्ते पहले तो केजरीवाल कह रहा है मेरे पास सब इंतजाम है, और एकदम ही अचानक क्या हुआ भाई? ये पॉलिटिक्स तो नहीं है, ये भी लगता है दिमाग में। तो यहाँ नंबर ऑफ तो पेशेंट ही बहुत ज्यादा हो गए ना। हाँ, नहीं वो तो सब चीज ठीक है, लेकिन वो पहले भी हुई थी ऐसे, तो जब भी नहीं हुई है हो सकता है मतलब ये लोग तो वो भी बना देते हैं ना पॉलिटिकल मुद्दा। वे ऑक्सीजन कम हो गई, ऑक्सीजन कम हो गई, बेड कम हो गए। अभी हमारी सिस्टर की जो बड़ी समधन है उसको